अच्छा, आज का जो सेशन है ये बेसिकली फ्रीलांसिंग के ऊपर है। इसमें हम काफ़ी डायमेंशंस को एक्सप्लोर करेंगे और डेप्थ में एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि हम फ्रीलांसर कैसे बन सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ माय कन्वर्सेशन इज गोइंग टू बी इन इंग्लिश, but I will still try to switch in Urdu as well. And because after all, our international language of communication is English, and we have to communicate in English with other clients, especially those who are not living in Pakistan, who are abroad. So we have to talk to them in their language, and they can only understand English. Yes, when we are talking about the localized clients, जैसे हम पाकिस्तान के लोग की बात करते हैं तो हम उनके लिए उर्दू में बात कर लेते हैं उनसे। उनको ज़रूरी नहीं होता कि आपने उनसे उर्दू में इंग्लिश में ही बात करनी है। यू कैन डेफिनेटली टॉक टू देम इन उर्दू, ठीक है। लेकिन in case of international clients, you have to adopt English language as a medium of communication, whether you are talking to them on the phone, whether you are talking to them through an email, whether you are talking to them through the social media channels. Whatever your source of communication with them is, no matter what you do, your tone should be very calm and composed. आपको पता हो कि आपने किस तरह से ऑडियंस जो है उसको अट्रैक्ट करना है, और आपको ये भी पता हो कि आपने किस तरीके से अपने क्लाइंट्स को विन करना है। तो फ्रीलांसिंग जो है वो एक फैंसी टर्म हमें लगती है सुनने में, जी आप घर से बैठ के अर्न कर लेंगे घर से बैठ के, बट देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क इन्वॉल्व्ड इन द बैकग्राउंड। नाउ इज माय वॉइस ऑडिबल? I hope I am clear enough, because that is very important when I am talking about something. Yes. Am I audible enough? Okay, looks like I am audible enough, because no one is saying anything right now. But if you have a query, you can just raise your hand and let me know so that I should be addressing it. And I will also keep on checking the chat. And right now, I just want everyone to hear me properly so that there is no hearing issue from my side or from your side at all. We have to be very careful about these things. So right now I'm going to share my slides with you, and there are a lot of things in it which will be lovely to hear actually about me, especially if you want to know more about me, like what I do and how I do everything, and how I'm managing my family life with my work life, and how I became a freelancer and what's my story. So you will definitely love that. But okay, let me just put the microphone near me. Now I think I should be audible now. Okay, now that's good. Thank you. So now I'm just going to let you know what I do. So I'm just going to share my slides with you. Just give me a second, and here I am going to share my screen. So here you go. Now, if you can see this screen, please acknowledge. Can you see the screen? Yes or no? Can you see the screen? Yes, ma'am. Okay, that's wonderful. So today we are going to talk about the art of freelancing. But first of all, I want to ask quickly, how many of you know what is freelancing? Yes. Can you just quickly tell me? I just need to know what you know about freelancing. So then I should just continue afterwards. Freelancing means you are providing any services Okay, that's to wonderful. anyone, to any company or any individual, and they will pay you. That's wonderful. All right. That's an amazing answer. That Anyone is else? just a raw, you can say that's just a raw definition of Wow, freelancing. that's I don't know the exact very... one. No, it's okay. It's okay. It's a perfect answer. It's totally okay. All right. Anyone else? Ma'am, it's basically about being self-employed. There are different web forums like Fiverr, Upwork,
guru.com, where we can go and we can provide our services in exchange of money. That's wonderful to know. All right. So it means I can probably assume that most of you already know a little about freelancing. Is it so? Like you know the definition, that's what I mean. Right? Yes or no? All right. So now let's just continue afterwards. Okay. So today we are just going to explore. First of all, we are going to explore the ways you can be a freelancer, and then we are going to explore the art of freelancing, which is the heart of this today's session actually, which means that today's concept is going to revolve not only around what you can do, okay, like how you can earn. The main purpose of this session is today to give you a brainstorming kind of exploration about the analysis that you are going to do about your own self, about the business or things you are going to start. So first of all, let me just quickly give you my quick introduction. Like okay, I'm Sadhu Mazhar, I'm the CEO of Talk 360 SMC Private Limited. But that's not enough. I would like to share a bit more about me. Like I was featured in one of the freelancers among Pakistan Software Export Board. So this will definitely give you the credibility of whatever I'm trying to say. Secondly, my story was also mentioned in my University of Lahore magazine, where I was a student back then in 2016. I have got 7+ years of content writing and FB ads exposure. I am a Google certified IT support professional level 1. I have done it with very good grades. I am she means business, um, you can say certified, or you can say that at least I attended this training for that, for the small businesses. So I do know the basics and the core credentials of freelancing through social media. Then I know I have got a lot of audience, alhamdulillah, on social media overall: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok, etc. By profession, if you talk about me, I'm MBHR, and I have got SPSS and Excel expertise in terms of data analysis, and the rest you know that I'm the CEO of Talk 360. Now let's just quickly introduce what is freelancing. Well, this is a general evaluation of the income stream that was being generated by Pakistanis, and it's not too old actually. It's a very recent evaluation. I guess maybe a few months ago this evaluation was done. So it was found that if you see the circles over here, the orange portion, it represents the age group 25 to 34 age, right? And you can also notice in another circle that okay, this same income stream generating audience is actually generating the most chunk of income overall. If you talk about the freelancing income generation, then the second number is by the people who fall under 35 to 44 years age, right? And then the third number is of people who are uh, 18 to 24. They are showing a lot of representation, which means that a lot of them are either doing free of cost internships on in organizations or online, or their income their income is very low. Because if you see the second graph over here, which is a pie chart, you can see that their income is quite lower as compared to the people who are actually earning who fall under 45 to 54 years age, right? So these are the statistics. It means what I can find out from this, that people who are between 18 to 24 years age have a lot of potential to explore their dimensions. They have a lot of potential to actually earn income. Another income earning reason for them, being low, is also that they are badly in need of money. They need to earn money to support for their education and support their family as well.
most of the times it happens that they are the only bread earners in their families. So this is most of the times this is the case, and most of the times if you notice at this age, this age falls between the people. I mean, the people are doing actually bachelors and masters in this age, isn't it? So 18 to 24 years age. Yes or no? Do you agree? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, you're right. Okay, thank you. Thank you for the acknowledgement and guidance. All right. So that is what we are actually trying to talk about. That okay, 18 to 24 years age is the actual age where a student or a person or a teenager who is just crossing his or her teenage and joining the 20s, time period, that person is exploring life in his or her own way. He or she wants to try to avail things by working hard, but he or she does not know the direction. That's the problem actually, which is why they are either earning very low income, or either they are working free of cost for so many people, or maybe they are working for like a company where the company actually gives them work of 4 or 5 people and is not paying them enough. So this does happen. So definitely this age group actually can be utilized properly. Now this is what I would like to talk about as well, which is very important to talk about. It's a very famous quote of Walt Disney: the way to get started is to quit talking and begin doing. That is the essence of doing anything. आप सिर्फ अगर बातें करते रहेंगे कि अच्छा मैं ये कर लूंगा, ये कर लूंगी, तो कुछ नहीं होने लगा। अगर आपने कुछ करना है तो आपको उसको शुरू करना है। कहाँ से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, आज हम इस पे बात कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहली चीज होती है जब आप फ्रीलांसिंग की बात करते हैं, तो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने से पहले आपने सिर्फ ये एक्सप्लोर करना होता है। पहली चीज है कि आपने इनकम स्ट्रीम तो देख ली कि पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है। फिर आपने ये देखना है कि अच्छा आप किस एज कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। फिर आपने ये देखना है कि अच्छा आपको मोटिवेशन हासिल करनी है, तो आप अपनी एज ग्रुप के लोगों को देखें, वो किस इनकम स्ट्रीम में फॉल कर रहे हैं, क्या उनकी सक्सेस स्टोरीज हैं। उनकी हो सकता है कोई फेलियर्स भी होंगे, उनको स्टडी करने की कोशिश करनी है आपने। आपको पता चलेगा कि कोई भी बंदा विद इन 1 डे जो है अपने एक पर्टिकुलर गोल पे नहीं पहुंचा। हर कोई स्ट्रगल करके पहुंचा है। अगर कोई आपको ये कह दे कि नहीं मुझे तो विद इन अ डे जो है मैंने ये सारा कुछ अर्न कर लिया, मैं रातों रात अमीर हो गया, ये हो गया वो हो गया, नहीं, इट्स अ प्लेन लाई। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने जब भी कुछ अर्न करना है तो आपने हमेशा कोई ना कोई मुश्किल फेस करनी होगी। everyone is going to have his or her own exam, right? In the end of the day, you can be a winner, you can not be a winner, that is your choice. ठीक है। किस्मत बेशक अल्लाह ताला ने आपके हाथ में रखी है, कई चीजों में अल्लाह ताला ने आपके हाथ में रख दी, कई चीजें अल्लाह ताला ने अपने इख्तियार में रखी। स्टिल देन यू कैन स्टिल कीप ऑन वर्किंग हार्ड, और वहां पे आपकी काम आती है क्या चीज, कंसिस्टेंसी। और दूसरी चीज, ये कोट आपको बहुत फायदा देगी अगर आपने इस पे सही तरह से अमल किया। इसका मतलब है द वे टू गेट स्टार्टेड इज टू क्विट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग। ठीक है। यहाँ से हम अपनी बात का स्टार्ट कर रहे हैं। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात की जाए तो देयर आर सो मेनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ फ्रीलांसिंग। ठीक है। लाइक यू डिड गिव मी द करेक्ट डेफिनेशन कि अच्छा फ्रीलांसिंग तो ये होता है कि लाइक यू आर एक्चुअली अर्निंग एन इनकम फ्रॉम समवेयर एंड योर इनकम स्ट्रीम्स आर अमेजिंग। और ये भी होता है कि समटाइम्स योर लक इज विद यू, समटाइम्स इट्स नॉट। ठीक है। many times you are exploring one dimension of freelancing and you are not earning anything at all from it, then you just quit it and you start doing another thing. Sometimes that trick works for you, sometimes it does not. But does that mean that you should stop freelancing? No. You just need to keep on trying. You just need to wait for the right time. That's what I mean by consistency. बहुत दफा ऐसे होता है, कंटेंट राइटिंग होती है ना, बहुत सारे लोग अपना काम जब स्टार्ट करते हैं कंटेंट राइटिंग में, वो कहते हैं कि हमें क्लाइंट नहीं मिलता, हमें समझ नहीं आती हम काम कैसे करें। मैं उन्हें कहती हूँ कि डू अ सिंपल थिंग, make a free of cost blogger.com website or a wix.com free of cost website, or just go to wordpress.com, make a free of cost website। कुछ भी ना करें आप, आपको कुछ नहीं लिखना आता, just start exploring how to write a good essay। ऐसे राइटिंग जो है ना उसके यूट्यूब पे वीडियोस देखें, आपको बड़ा कुछ समझ आएगा कि अच्छा
the art of writing an amazing essay, ऐसा essay जो आपका यानी ऑडियंस का ध्यान आपकी तरफ लेके आए, आपको मतलब ऑडियंस को मजबूर कर दे कि लाइक that particular person is you know there to read your content, ठीक है, तो वो आपकी जो है ना ऑडियंस बिल्डअप करेगी, आपकी वेबसाइट पे लोग आना शुरू होंगे. एंड व्हेन यू आर एक्चुअली you are continuously writing essays, आप फिर उसके ट्रिक्स को एक्सप्लोर करेंगे. ओके, हाउ टू राइट अ ब्लॉग आर्टिकल, हाउ टू राइट अ वेबसाइट आर्टिकल, how website content works, how on-page and off-page search engine optimization in content writing works. आप ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करेंगे. फिर ये कि how do we do the SEO for blogs and websites, उसकी कितनी डेप्थ में आपको ट्रिक्स पता चलनी शुरू हो जाएंगी. तो ये चीज़ें हैं the way you start from. You always start from zero. You start from nothing. You start from scratch. ये आपका एक पेट रूल होता है, ठीक है. और उसके बाद ये होता है कि इट डज नॉट मैटर व्हाट डिग्री यू हैव. समटाइम्स यू आर एन एमबीबीएस डॉक्टर but still you want to do content writing. Sometimes you would want to do graphical designing. Sometimes you would love to do Android app development, even if your degree is 180 degrees opposite to what you are doing. ठीक है, तो होता है ऐसे, बिल्कुल होता है. And many times miraculously or even by will or even by courage, it does happen कि आपकी ना ही आपकी डिग्री अफेक्ट हो रही है नेगेटिवली, ना ही आपका काम अफेक्ट हो रहा है. आपका पैशन जो है वो भी अपना पैरेलल पे चल रहा है, आपकी डिग्री आपके पैरेलल पे चल रही है. एंड बोथ द प्रोफेशंस आर वर्किंग आर गोइंग पैरेलल टू ईच अदर. ये होता है, ठीक है. अब हम आते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे. प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, ये मैंने 8 बेस्ट डायमेंशंस यहाँ पे मेंशन की है. इस स्लाइड पे आपको नजर आ रही हैं 4 डायमेंशंस. इसी तरह अगली स्लाइड्स पे भी आपको स्लाइड पे आपको 4 डायमेंशंस और नजर आएंगे. मैंने क्या किया है, मैंने जैसे अगर लेट से 5 या 6 डायमेंशंस थी, मैंने उनको ग्रुप करके एक डायमेंशन बना दिया, ठीक है. So what you can see over here, you can see 4 dimensions on this current slide, ठीक है. And I am just talking about the most famous ones which are actually there, which are actually helping people to earn income. So very first step for doing freelancing is to explore these dimensions one by one, ठीक है. आज हम पहले अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे कि अब हमने आगे करना क्या है डायमेंशंस को एक्सप्लोर करने के बाद. सॉरी. So first dimension is programming. प्रोग्रामिंग एक बहुत वास्ट डायमेंशन है. आपको पता है कि जब आप BSc करते हैं, बैचलर्स की डिग्री होती है, मास्टर्स की डिग्री होती है, MCS वगैरह, तो प्रोग्रामिंग के ऊपर ही होती है वो डिग्री. लेकिन आप उसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे होते. यू आर एक्चुअली स्टडिंग मोर देन 30 सब्जेक्ट्स आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है. और हर सब्जेक्ट की लैंग्वेज अलग है, हर सब्जेक्ट की टोन अलग है, उसकी एप्लीकेशन अलग है, ठीक है, उसकी फील्ड भी अलग है. आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हैं, तो डू यू नो दैट यू डोंट जस्ट से ओके आई एम जस्ट अ प्रोग्रामर. they would ask for the details, which kind of programmer are you, whether you do Android app development, whether you do iOS app development, whether you develop apps for the PC or you can say Windows, or whether you develop apps for the Mac, laptops or computers, ठीक है. तो हर चीज की, या आप ये भी वो आपसे कह सकते हो ओके यू नो एनीथिंग अबाउट Ubuntu or anything about Linux or any such platform और वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें होती है. प्रोग्रामिंग में पाइथन वगैरह भी आता है, इसको हम थोड़ा सा डेटा एनालिसिस में डिस्कस करते हैं. अच्छा, प्रोग्रामिंग में हम यहाँ भी ये भी आता है, वेब ऐप डेवलपमेंट आ जाती है, ठीक है. उसके अंदर भी कितनी सारी टाइप्स आ जाती हैं. HTML5 होता है, CSS होता है, मतलब CSS3 था, फिर अब 5 भी आने वाला है, मेरा चला भी गया हो, ठीक है. इस तरह PHP5 है, इस तरह और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं. और आप उनको कॉम्प्लिकेटेड जितना बनाना चाहें वो तो फिर आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है. तो मैं इतनी डेप्थ में जा नहीं रही, मैं आपको बेसिक्स बता रही हूँ जस्ट टू गिव यू द बेसिक आइडिया आपकी बेस डेवलप करने के लिए, व्हिच इज माय एक्चुअल पर्पस राइट नाउ. अच्छा, सेकंड आपकी डायमेंशन है, दैट इज डेटा एनालिसिस. डेटा एनालिसिस हैज अ लॉट ऑफ स्कोप, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अगर आपने मास्टर्स की डिग्री की है या एमफिल किया तो डेफिनेटली यू माइट हैव गॉन थ्रू a thesis work, thesis work में definitely you might have used SPSS or maybe Excel as well.
तो ये होती है फ्रंट एंड डेटा एनालिसिस होता है. फ्रंट एंड मींस यू आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ कोडिंग एट ऑल. You don't know coding, like a person like me does not know coding at all. तो मैं front end data analyst हूँ, right? मुझे पता है कि how to use SPSS, how to generate results from it, how to interpret those results. मुझे पता है. Same goes with Excel. अगर मुझे correlation, regression और इस टाइप की चीजें निकालनी है, उनको evaluate करना है, और मेरे पास जो डेटा साइज है, लेट्स से वो 1000 है, 2000 है, 10,000 है, नो मैटर व्हाट इट इज, तो एक वक्त आएगा एक्सेल भी वहाँ जवाब दे जाएगा, बट SPSS will not. SPSS a very high end and very professional, and I would also say very expensive application, which is actually based on Python. Python एक programming language है, again if you relate it with programming. अब यही चीज अगर हम देखते हैं तो डेटा एनालिसिस जो है it relies on a lot of programming languages. Especially Python is the very basic element of data analysis, but a person like me who does not know the coding thing at all, I would be relying on applications like Tableau है, SPSS है, Strata है, उसके अलावा Excel है. Excel is an excellent application. Most of the times it is being used at offices. ज़्यादातर लोग offices में use करते हैं. वजह ये होती है कि it's easy to use, and everything is very handy if you talk about Excel. ठीक हो गया. तो डेटा एनालिसिस में आप क्या कर सकते हैं? बेसिकली आप डेटा एनालिसिस में रिपोर्ट्स जनरेट करके दे सकते हैं लोगों को. आपका रिसर्च पेपर है उसमें डेटा एनालिसिस यूज होता है, थीसिस में यूज होता है. अगर आपने कोई गवर्नमेंट लेवल पे कोई स्टडी कंडक्ट की है और आप उसके बेस पे कोई रिजल्ट्स जनरेट करना चाह रहे हैं और उसके बेस पे आपने कोई डिसीजन लेना है, तो आप उसके बेस पे इवैल्यूएशन करेंगे. उसमें आपका एक एक चीज आ रही होगी कि लोगों की जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, लेट्स से कोई सर्वे है और आपने कंडक्ट किया, तो आप कहेंगे अच्छा अब जब मैं यहाँ पे पीछे में लेके जाती हूँ दोबारा डेटा एनालिसिस पे. यहाँ मैंने आपको जो दो ग्राफ्स दिखाए, दिस इज आल्सो डेटा एनालिसिस. ये भी एक इवैल्यूएशन हुई है पूरे पाकिस्तान की. ठीक है, ये मैंने इवन यहाँ पे रेफरेंस भी लिखा हुआ है, तो यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट योरसेल्फ टू इवैल्यूएट वेदर इट्स करेक्ट और नॉट. ठीक है, ये एक अच्छी रिलायबल वेबसाइट है, लाइक इट हैज अ लॉट ऑफ विजिटर्स गोइंग ऑन दिस वेबसाइट. तो एक अच्छा वो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन मिलेगा. We have got data analysis. अब data analysis में people are earning billions भी कर रहे हैं. तो अगर आपका अपना business है तो you can also provide data analysis services, whether to your clients or whether to your customers. आप कुछ भी कर सकते हैं. That's your choice. Same goes with programming. You can do anything with programming. आपको जो दिल मतलब आपका करता है और आप feel करते हैं like it's relevant to you or maybe it's kind of interesting for you, just go for it. ठीक है, don't go for second or third opinions in the sense that those opinions are going to discourage you. Yes, always get more than one opinion for your encouragement for taking a better decision, but in the end of the day the decision maker should be you only. अगर आपके लाइफ के डिसीजन आपके अलावा 10 बंदे और ले रहे हैं तो बिलीव मी आपका कभी अपने ऊपर सही से ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पाएगा. तो सबसे पहला जो एलिमेंट है ना, अपने ऊपर ट्रस्ट रखना जरूरी है और अपने आप पे यकीन रखना कि आप क्या कर सकते हैं. उसके लिए पहले आप हमेशा ये एक पेट रूल होता है कि आप पहले एक चीज को इनपुट जो है आपको मिलेगी तो आप उसका कोई आउटपुट जनरेट कर सकते हैं. मैम एक्सक्यूज मी मैम, मैम कंसल्टेंसी के लिए भी आप किसी से मशवरे वगैरह अपने में भी जो आप वर्क करना चाह रहे हैं उसके बारे में जस्ट इंफॉर्मेशन और गाइडलाइन वगैरह ये तो जरूरी है ना? बिल्कुल बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है. हर चीज की गाइडलाइंस आपको पता हो. ठीक है, तो सबसे पहले जब आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं ना और आप जीरो पे खड़े हैं, लाइक यू डोंट नो योर राइट पाथ, आपको समझ नहीं आ रही है, तो वो बात है जो मैं अभी बता रही हूँ कि आप लिटरली आपने अभी स्टार्ट किया और आपको यही नहीं पता डायमेंशंस क्या है. ये वो स्टार्ट है. जब आपको पता चल जाता है अच्छा ये आपकी डायमेंशंस हैं और ये एक्सप्लोरेशंस हैं, अच्छा अब इसमें से ना मैंने क्या चूज करना है कि व्हाट इज इंटरेस्टिंग फॉर मी, व्हाट आई कैन डू इजीली, व्हाट आई कैन प्रैक्टिस एक्चुअली. तो पहला तो ये स्टेप हमारा है कि हम ये चूज करने जा रहे हैं. लाइक एवरी वन ऑफ यू might be finding anything out of these interesting,
ठीक है, और वो चाहेगा ये चाहेगी कि यू शुड बी एक्सप्लोरिंग दैट पर्टिकुलर इंटरेस्टिंग थिंग ऑन योर ओन एंड टू अ डेप्थ लेवल, क्या वो बस रिपीटेडली उसी को फिर एक्सप्लोर करें, ये चीज होती है। ठीक है, डिड आई आंसर योर क्वेश्चन बाय द वे? ओके, ऑलराइट। सॉरी। अब आ गई कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन आप यूट्यूबर्स को देखते हैं, यूट्यूबर्स कंटेंट अपलोड कर रहे होते हैं, टिकटॉक पे लोग कंटेंट अपलोड कर रहे होते हैं, इसी तरह कोई फेसबुक पे अपलोड कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे कर रहा है, कोई कहाँ कर रहा है, मतलब मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप देखते हैं। many times you do also notice के उनमें से काफी सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी प्रोफाइल्स के साथ या ब्लू टिक आप देख रहे होते हैं या टिक मार्क देख रहे होते हैं या कोई साइन देख रहे होते हैं जिससे वो शो कर रहा होता है जी ये वेरीफाइड है। वेरिफिकेशन क्या है कि मतलब उन्होंने वो कंटेंट इस लेवल पे डेवलप किया that they became famous such, I mean, to such an extent that even the social media platforms are going to recognize them। जैसे YouTube है, YouTube आपको recognize कर लेगा, ठीक है, वो आपको वैलिडेट करते हैं, हर प्लेटफॉर्म पे चेक करते हैं लाइक व्हाट काइंड ऑफ प्रेजेंस यू हैव गॉट, ठीक है, वहां से वो आपको वैलिडेट करते हैं। और अगर आपकी कंटेंट क्रिएशन के अंदर यूनिफॉर्मिटी है, कंसिस्टेंसी है, ठीक है, नीटनेस है, और ऐसी मतलब आपका जो ऐसा कंटेंट है कि ऑडियंस जो है वो मजबूर हो जाए उस कंटेंट को देखने के लिए, एंड यू आर एक्चुअली बिल्डिंग अ लॉयल ऑडियंस फॉर यू, वो होती है कंटेंट क्रिएशन। इन माय सेंस दैट्स व्हाट आई मीन। ठीक है, अब वो कंटेंट क्रिएशन आप जब आप वीडियोस की बात करें अगर, तो वो वीडियोस किसी भी टाइप की हो सकती है, वो इंफॉर्मेटिव हैं, एजुकेशनल हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, वो वीडियोस कोई ट्रेनिंग सेशंस आपने कंडक्ट किए हो, आप उनको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, कहीं भी अपलोड कर देते हैं, वो हो सकता है। वो कोई डिसेंट एजुकेशनल एंटरटेनमेंट कंटेंट भी हो सकता है, वो कोई स्क्रिप्टेड प्ले या शॉर्ट प्ले भी हो सकता है जो 3 to 4 या 5 मिनट्स में एक स्टोरी बता रहा हूँ, वो स्टोरी टेलिंग भी हो सकती है, वो एक मूवी भी हो सकती है, मूवी का क्लिप भी हो सकता है, जिससे कहते हैं ना, जैसे आप अक्सर मूवीज के ट्रेलर्स देखते हैं तो आप नोटिस कीजिएगा कि वो किस तरीके से उनको डिजाइन करते हैं, इतने अच्छे तरीके से, स्पेशली जो हॉलीवुड मूवीज होती हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द डिसेंट वंस ऑब्वियसली, तो आप उनके ट्रेलर्स देखें, इतने जबरदस्त उन्होंने डिजाइन किए होते हैं, all the audience gets hooked to that particular content, वो मजबूर हो जाते हैं देखने के लिए and they do that every time, वो हर दफा ये करते हैं, so that is the art of content creation। अब उसके लिए ऑब्वियसली वो वीडियोस के ऊपर भी वर्किंग कर रहे हैं, उसका जो बैकग्राउंड है, उसका जो कंटेंट है, उसके अंदर जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो उस पर्टिकुलर फ्रेम में नजर आ रहे हैं, एक एक चीज, एक एक डिटेल पे वो काम कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह ब्लॉग राइटिंग है, ब्लॉग राइटिंग इज आल्सो कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। Graphical designing, that is also somehow it's also part of content creation, but it's a separate dimension। अब हम आते हैं ग्राफिकल डिजाइनिंग पे। ग्राफिकल डिजाइनिंग it can be either a poster, it can be either a flex, it can be a business card, it can be a written card, it can be a presentation, it can be a report designed, it can be a CV designed by a professional using graphical designing tools, it can be anything, it can be a logo as well, it can be merchandising equipment, or uh, the things that you are actually printing on a merchandise। For example, this is a marker। अब ये जो marker है, ठीक है, इसके ऊपर piano fine liner लिखा हुआ है, if you can see it, ये उन्होंने एक लोगो लगाया हुआ है। अब ये क्या है कि उन्होंने प्रोडक्ट जो है उसकी जो शेप है, डिजाइन है, वो सेम रखा हुआ है, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि जैसे ये मार्कर है, ठीक है, ये मतलब अगर पॉइंटर है तो उसको उन्होंने फाइन लाइनर कर दिया, सो दैट्स एज अ पॉइंटर। लेकिन इसी तरह से यही शेप है, शेप नहीं चेंज हुई, मर्चेंडाइज वही है, लेकिन इन्होंने आगे लोगो चेंज कर दिया और यहाँ पे लिख दिया स्मार्ट, यहाँ लिखा फाइन लाइनर और यहाँ लिख दिया स्मार्ट। तो एक्चुअली व्हाट इज दिस, दिस इज अ मार्कर, ठीक है। अब ये चीज अगर आप देखते हैं एग्जांपल्स के तौर पे, तो आपको आइडिया होगा कि अच्छा, ये जो इन्होंने डिजाइनिंग की थी, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ ग्राफिकल डिजाइनिंग, कि इन्होंने कहीं ना कहीं डिजाइन किया होगा, उसको प्रिंट आउट किया होगा, उसके बाद
कोई डाई जनरेट किया होगा, उस डाई ने इसको पूरा जो है शेप को बिल्डअप किया है, 3D आर्ट बनाया है, ठीक है। और ये जैसे ये रिमूवेबल है बिकॉज इट्स अ मार्कर, बट इट्स नॉट रिमूवेबल, ठीक है, बिकॉज इट्स अ पॉइंटर। तो ये इसमें अब शेप तो सेम है, लेकिन इन्होंने इसके डिजाइन में थोड़ा सा वेरिएशन कर दिया, जैसे इसका डिजाइन इसमें इन्होंने क्रिएटिविटी चेंज कर दी, इसमें चेंज कर दी। तो ये बड़ा कुछ होता है ग्राफिकल डिजाइनिंग में। अगर आप इसको डेप्थ में एक्सप्लोर करना चाहें तो यूट्यूब पे एक चैनल है इमरान अली दीना का, GFX मेंटोर। इट इज हाईली रिकमेंडेड फॉर लर्निंग ग्राफिकल डिजाइनिंग। मैं हमेशा किसी को बताती हूँ। सॉरी। अच्छा जी, अब आ जाए अमेजोन पे। अमेजोन की आजकल बहुत बातचीत चल रही है, हर दूसरा बंदा आपको अमेजोन के बारे में बात करता हुआ सुनाई देगा। कोई कहेगा जी वर्चुअल असिस्टेंट्स के ऊपर चलते हैं, कोई कहेगा अच्छा ड्रॉप शिपिंग करते हैं, कोई कहेगा अच्छा हम FBA की बात करते हैं, फ्रेट बिजनेस अकाउंट होता है FBA, कोई कहेगा अच्छा हम जो है ना प्राइवेट लेबल अकाउंट बना लेते हैं। अब ये सब एक तरह से आप कह लेंगे ये किस तरह एम्बिगुअस टर्म्स हैं, आपको अक्सर आपके ज़हन में ये चीज क्लिक करती है कि जो है ना एक्सट्रीम ई कॉमर्स वाले ये बात कर रहे थे, इनेबलर्स वाले ये बात कर रहे थे, स्पोर्ट्स सेक्टर पाकिस्तान वाले ये बात कर रहे थे, आई स्किल्स वाले ये बात कर रहे थे, फलाना ये बात कर रहा, फलाना ये बात कर रहा, फलाना। यानी ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो अपनी टर्म्स उन्होंने रखी होंगी, ठीक है। इसी तरह से वो मुख्तलिफ चीजें जो है ना वो डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन जब आप खुद से एक्सप्लोर करना चाहेंगे तो आप कंफ्यूज बैठे होते हैं कि ये है क्या। अच्छा, मैं सिंपल टर्म में बताती हूँ। Amazon is a platform which is actually owned by Jeff Bezos, और अब में भी आई गेस वो CEO से स्टेप डाउन हो चुका हुआ है, और और उसकी जगह एक और CEO आया है, करंटली आई डोंट नो हिज नेम, ठीक है। वो आप लोग जरूर इंटरनेट पे जाके एक्सप्लोर कर लीजिएगा जब आपको टाइम मिले। Amazon बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स का। ये दोनों बेसिकली ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स है। ई कॉमर्स एक बहुत वास्ट डायमेंशन है, ठीक है। और मैं हमेशा ये चीज कहती हूँ और आज भी यही आपको इन द एंड में यही बताऊंगी कि कभी भी एक प्लेटफॉर्म पे आपने रिलाई नहीं करना, आपने अपना प्लेटफॉर्म खुद बनाना है। कैसे बनाना है आज हम ये एक्सप्लोर कर रहे हैं। अच्छा जी, अमेजोन की बात करते हैं हम। अमेजोन पे व्हाट यू डू, अब उन्होंने एक सिंपल एक प्रोसीजर रिसेंटली ये हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान को परमिशन दे दी, लाइक पाकिस्तान कैन हैव अ सेलर अकाउंट डायरेक्टली, सो एक्चुअली यू कैन मेक अ प्रोडक्ट एंड यू कैन डायरेक्टली एक्सपोर्ट इट टू अमेजोन। अगर आप अमेजोन को एक्सपोर्ट करेंगे दैट इज फ्रेट बिजनेस अकाउंट। इसमें क्या होता है, अमेजोन सेज ओके यू जस्ट पे अस द शिपमेंट चार्जेस, ठीक है, जो आपका खर्चा लगेगा, और जो हमारा वेयर हाउस का चार्जेस है वो आपने हमें पे करने हैं पर मंथ, ठीक है। उसके बाद आगे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी टेंशन खत्म कि वो प्रोडक्ट सेफली अगर डिलीवर होनी है किसी क्लाइंट को, सॉरी किसी कस्टमर को, तो कितनी क्वांटिटी चाहिए है, आप वो सारी हैसल खत्म। व्हाट दे वुड डू, वट एवर इनकम दे आर एबल टू जनरेट थ्रू दैट वो आपको मिल जाएगी। सिर्फ उन्होंने क्या माइनस करना है, अपनी शिपमेंट जो चार्जेस हैं, मतलब शिपमेंट के तो चार्जेस आप पे कर रहे हैं ऑब्वियसली, यू आर पेइंग दैट मनी, ठीक है। अब पैकेजिंग जो है ना, जो बेसिक पैकेजिंग है वो तो आपने यहाँ से करके भेज दी, लाइक यू आर सेंडिंग कंटेनर्स ऑफ योर प्रोडक्ट टू अमेजोन, ठीक है। कंटेनर्स मोस्टली जाते हैं, दैट्स व्हाट शिपमेंट वर्क्स लाइक। फिर उसके बाद आप उसी को एक्सप्लोर करते करते अमेजोन आपको ये कहता है कि अच्छा लेट्स से अगर आपसे ये भी नहीं हो पाता, लाइक मेकिंग अ प्रोडक्ट इज नॉट एन इजी जॉब, यू नीड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अ लॉट ऑफ मनी फॉर दैट, बहुत आपको मनी चाहिए, मैम ठीक है, लॉट ऑफ इक्विपमेंट, मैम फिर जी आपको ऑफिस। जी जी। मैम यस। ये आपने बात बात की है कि प्लेटफॉर्म चेंज करने हैं, मींस के सॉरी, सॉरी प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन अगेन। आप मुझे चैट में भी लिख के दे सकते हैं सो दैट आई शुड बी एबल टू हियर इट प्रॉपर्ली। डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने अपने आप को इस प्लेटफॉर्म पे आप अपने आप को कैसे ला सकते हैं, दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू आस्क। जी जी। अच्छा चलिए, अगर तो आपका क्वेश्चन यही है कि इस प्लेटफॉर्म पे आप अपने आप को कैसे ला सकते हैं, तो जी आप
बिल्कुल ला सकते हैं अपने आप को। सेलर अकाउंट होता है अमेजोन का, उसके लिए उसकी रिक्वायरमेंट्स देखने के लिए कुछ अच्छे रिलायबल ग्रुप्स हैं, उनके ऊपर जरूर आप ज्वाइन करें फेसबुक पे। उनसे आप उनके कुछ भी ना करें स्टार्ट में, सिर्फ उन्हें ऑब्जर्व करें। 10-15 दिन की आप पोस्ट अपलोड करते हैं, उनके पोस्ट को रीड करें और वो जो ग्रुप्स हैं उनको फॉलो करना शुरू कर दें रेगुलरली। ठीक है, स्टार्ट हमेशा आपने जीरो से करना है। तो आपको पता है कि यू नीड अ डायरेक्शन। आपको डायरेक्शन ऐसे नहीं पता चलती कि कोई आपको हाथ पकड़ के चलाएगा और आपको बताएगा ये ऐसे कर, ऐसे कर। नहीं, आपने खुद सीखना है। लेकिन आपने खुद सीखना है तो ऑब्वियसली कोई तो होगा जो आपको सही डायरेक्शन देगा। और सही डायरेक्शन के लिए जरूरी है कि जो काम आपने करना आता है उससे इंटरेस्ट से रिलेटेड अपने ग्रुप्स फेसबुक पे ज्वाइन कर लेने होते हैं। ठीक है, फेसबुक पे भी और लिंक्डइन पे भी इट इज हाईली रिकमेंडेड प्रैक्टिस। ठीक है, मैंने तो हमेशा से अपनी लाइफ में अडॉप्ट की है चीज। ठीक है, अमेजोन का सेलर अकाउंट बनता है। सेलर अकाउंट जो है उसके बेस पे आई गेस अब मैं इसको और पास कर लेती हूँ ताकि आपको ज्यादा क्लियर है आवाज। सॉरी, अमेजोन का सेलर अकाउंट बनता है बेसिकली, और उससे ये होता है कि आप जो है अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं कहीं भी पूरी दुनिया में। ठीक है, अब रिसेंटली एक हमारे लिए मिरेकुलस अपॉर्चुनिटी इट हैज बीन सॉरी। तो उसके बेस पे आपको बहुत फायदा रहता है कि व्हाटएवर यू आर प्रोड्यूसिंग इन पाकिस्तान, उसकी जस्ट क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, अप टू द मार्क हो, एंड यू जस्ट सेल इट इंटरनेशनली। तो अमेजोन एफपीएल ये होता है कि आप जो है अमेजोन की जिम्मेदारी लगा देंगे कि वो आपकी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा हर क्लाइंट को, सॉरी हर कस्टमर को। आपकी वो हैसल खत्म कि अच्छा आपको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सा चैनल अडॉप्ट करना है। लेकिन अगर आप प्राइवेट लेवल पे जाते हैं तो प्राइवेट लेवल एक हैसल है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसमें स्पेंड होता है, फिर एडवर्टाइजमेंट अमेजोन की अपनी होती है। ठीक है, आपको वो भी यूटिलाइज करनी पड़ती है, एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। और उसके लिए फिर आप ये होता है कि यू हैव टू गेट मोर इन्वेस्टर्स अकम्पनिंग यू। और ऐसा भी होता है बाद में, यू जस्ट से ओके दिस इज माय आइडिया, दिस इज माय प्रोडक्ट, आई जस्ट नीड सम इन्वेस्टमेंट फॉर इट। आप उसकी कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर कराते हैं। ठीक है, और उसके जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है वो अमेजोन को शो अप हो जाती है, यू जस्ट शो दैट टू देम। और अपनी वैलिडिटी प्रूव कर रहे हैं, आप बता रहे हैं सर मैं मास प्रोडक्शन कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ। ठीक है, और अमेजोन जो है वो आपको कहता है अच्छा अपना अपनी शिपमेंट सारी हमें भेज दें तो हम आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, विच इज द इजीएस्ट थिंग टू डू। उसमें रिस्क कम होता है एक्चुअली, क्योंकि अमेजोन डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी खुद ले लेता है। ठीक है, इवन दे रिफंड यू फॉर दैट, अगर उसमें कोई फॉल्ट निकला है उनकी वजह से, तो आपको बचत हो जाती है। लेकिन पीएल में क्या है कि ऑल द हैसल इज योर्स। ठीक है, ऑल द हैसल इज योर्स, यानी आपने वहाँ पे जिस कंपनी को मतलब आप फॉर एग्जांपल आप अपनी कंपनी पाकिस्तान में भी रजिस्टर कर रहे हैं, वही चीज आपने उस पर्टिकुलर कंट्री में ही करनी है। लेट्स से आप यूके में प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं और एक ब्रांड के तौर पे, तो ब्रांड आपको वहाँ पे एस्टेब्लिश करना है, वहाँ पे ट्रेडमार्क आपको चाहिए, कॉपीराइट्स आपको चाहिए, आपको वहाँ पे बिजनेस रजिस्ट्रेशन चाहिए, एक लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन की लिस्टिंग आपको रिक्वायर्ड होगी। वो सब करके फिर आप प्राइवेट लेवल या पीएल की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास 1 रुपया नहीं है, लेट्स से मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं अमेजोन मर्च से। मर्च इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मर्चेंडाइजिंग। अब यहाँ पे इसकी एक डायमेंशन आती है, ग्राफिक डिजाइनिंग की मैंने बात की थी। ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या होता है, टी शर्ट डिजाइनिंग भी आता है, मर्चेंडाइजिंग में ये भी आता है, जैसे पेन्स मार्कर्स वगैरह के ऊपर लोगोज या डिजाइन प्रिंट हुए होते हैं जैसे थीमेटिक बर्थडे केक्स वगैरह भी मिल रहे होते हैं, इस तरह से चीजें होती हैं, बहुत कुछ होता है जहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग यूज हो रही है। वही चीज अमेजोन ने लॉन्च की कुछ अर्सा पहले, उसे कहा गया अमेजोन मर्च। इन्होंने कहा कि नो मैटर वेयर यू आर सिटिंग, आप किसी भी कंट्री से हो, व्हाट यू आर सपोज टू जस्ट डू, आपको सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग आती हो, आप फोटोशॉप या कैनवा कुछ भी आता हो यूज करना, इलास्ट्रेटर भी हो सकता है, वो क्या कहते हैं कोरल ड्रॉ भी हो सकता है, एनी एप्लीकेशन दैट यू कैन यूज एक्चुअली, उसके ऊपर आप डिजाइनिंग करें एक्चुअली। ठीक है, और टी शर्ट्स वगैरह वो बना के अमेजोन को उसका डिजाइन दे। अमेजोन अगर वो डिजाइन अप्रूव कर लेता है तो आपको उसकी रॉयल्टी मिलती रहती है। ठीक है, अब वो उसकी जितनी मर्जी टी शर्ट प्रिंट करा ले, आपके टेंशन खत्म, आपका काम था सिर्फ उसकी मर्चेंडाइजिंग की जो है ना डिजाइनिंग करना।
और कैसे मैंने लोगों को सोचा, मैं कब से फोटोशॉप यूज कर रही हूँ, कैन यू बिलीव इट, मैं 13 years की थी, आई वॉज हार्डली 13 years old, ठीक है, एंड आई वॉज नॉट अर्निंग एनीथिंग एट ऑल दैट टाइम, आई वॉज जस्ट यूजिंग फोटोशॉप एज अ हॉबी। उस टाइम पे पेंटियम 1 पेंटियम 2 का दौर था, ठीक है, पेंटियम 3 आ गया, जब मैंने यूज किया एक्चुअली तब पेंटियम 3 होता था मेरे पास मतलब मेरी फैमिली के पास। तो वक्त की बात है कि उस टाइम पे भी शौक था, तो एज अ हॉबी मैं सिर्फ प्रैक्टिस करती रहती थी। आई नेवर एक्सप्लोर्ड फ्रीलांसिंग दैट टाइम, ना मुझे पता था, मुझे पता भी बहुत लेट चला, लाइक आई जस्ट केम टू नो अबाउट फ्रीलांसिंग इन 2009, ठीक है। तो जो 6 साल थे, मैंने 6 साल में क्या किया है, in those 6 years actually I was just doing nothing, not earning anything at all from anywhere, rather I was just practicing Photoshop, I was just practicing Microsoft Word, doing nothing at all, मतलब कोई सिर्फ ऐसे लिखने का शौक था। I used to submit my essays in my in magazines etc, सब मुझे शौक होता था। I used to upload my images on Facebook, ठीक है, फेसबुक मैंने 2008 या 9 में ज्वाइन किया, उससे पहले आई यूज टू यूज ऑर्किड। तो इस तरह से प्लेटफॉर्म्स की अगर बात की जाए तो आई यूज टू अपलोड माय कंटेंट ऑन माय ब्लॉग, ठीक है, कुछ भी नहीं करती थी, आई वाज नॉट अर्निंग एनीथिंग एट ऑल, बट आई वाज डूइंग समथिंग इन द एंड ऑफ द डे, ठीक है। यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं और वहीं से आपकी फिर जो है ना स्किल्स स्टार्ट डेवलपिंग, यू जस्ट स्टार्ट एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, और वही मेरे साथ भी हुआ। मुझे नए रास्ते पता चले कि अच्छा फ्रीलांसिंग भी होती है, इससे अच्छा इनकम जनरेट होती है। अच्छा इनकम जनरेट करने के लिए मुझे चेक करना है व्हाट आर माय एग्जिस्टिंग स्किल्स, मुझे एग्जिस्टिंग ऑलरेडी क्या चीज आती है, नई चीज में क्या सीख सकती हूँ, ठीक है, या सकता हूँ, ठीक है। और मतलब उस चीज को पॉलिश मुझे करना है, उस चीज को एस्टैब्लिश करना है, मुझे कैसे करना है, ठीक है। अब अमेजोन की बात की जाए, अमेजोन में मैंने यहाँ पे मर्चेंडाइजिंग ट्राई की, मैंने कहा मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन मैंने ना अभी तक इसको सही एक्सप्लोर किया नहीं है, लेकिन जितना मैंने किया मैं वो बता रही हूँ कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता लिटरली, मतलब लाइक आई एम जस्ट अपलोडिंग माय सबमिशन, whether they approve that or not, मेरी ये डायरेक्ट स्ट्रीम ऑफ इनकम है ही नहीं। तो मे बी फॉर दोज for those you know who have this as a direct income stream, उनको तो डेफिनेटली इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अ पर्सन लाइक मी हु हैज अ सेपरेट डायमेंशन okay, so Asad Sab, you are asking why there is heading which says freelancing types. A bit, sorry. So freelancing types means actually these are all the dimensions of freelancing. Okay. And if you are asking about the difference between freelancing and e-commerce, I would say that uh, if you alone are doing e-commerce, then it is also freelancing. And if you have got a team to do this work for you, or maybe you are also part of a team, or maybe you are heading a team, or maybe you are colleagues with a team, but you are a board of directors kind of, so even then but that time you will not be a freelancing person, that time you will be a business owner that time. तो हम ये जरूर डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीलांसिंग एंड बिजनेस। लेकिन अगर हम ये कहेंगे फ्रीलांसिंग और ई कॉमर्स में क्या डिफरेंस है, तो हम ये कहेंगे कि ई कॉमर्स कैन बी फ्रीलांसिंग, ठीक है। why? Because if you are alone doing it on your own self, sorry, your by your own self, तो ये फ्रीलांसिंग होगी, ठीक है। फ्रीलांसिंग क्या है कि एक अकेला बंदा जो है वो अर्न कर रहा है, और चाहे वो प्रोजेक्ट से बेस पे कर रहा है, चाहे वो कुछ मतलब कर रहा है, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, नथिंग बस इनकम जनरेट हो रही है, कभी थोड़ी आ रही है, कभी ज्यादा आ रही है, कभी वो चीज बढ़ बढ़ के काफी ज्यादा भी हो जाती है। तो द इनकम इज काइंड ऑफ फ्लक्चुएटिंग इन केस ऑफ फ्रीलांसिंग, ये होता है, इट डज हैपन। अच्छा इसके अलावा जी, दोज ऑफ यू हु वांट टू ड्रिंक वाटर, यू कैन ऑलवेज डू दैट, यू डोंट नीड टू आस्क अबाउट इट, ठीक है। और yes, Amazon and Daraz are definitely e-commerce platforms, but if you are starting as a freelancer, definitely you can earn through them, through these platforms as well. So if you talk about the freelancing types, and if you talk about the e-commerce platforms, तो बिल्कुल आप उनको एज अ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म काउंट कर सकते हैं।
Same goes with, you know, the clients you can get through other freelancing platforms like Upwork, Fiverr, People Per Hour, Guru, etc., where people are saying to you, okay, I have got an e-commerce store, I need someone to manage it. जब आप ये कहते हैं कि अच्छा someone needs to manage it, तो आप कहते हैं okay, I am very good at managing it, do let me know when I can start it. ठीक है, तो आप कहते हैं खुशी खुशी okay, I have done work on Amazon, I have done work on Draws वगैरह वगैरह ना. I have also made so many e-commerce websites, चाहे आपने clients के लिए ना बनाई, आपने खुद बना बना के अपने लिए रखी हो. ठीक है, चाहे उसमें से किसी की मतलब सेल जनरेट हुई हो ना हो, that does not matter. What matters is do you have a portfolio of that or not. ठीक है, पोर्टफोलियो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है. अच्छा, जो दराज डॉट पीके है ना, ये लोकलाइज्ड प्लेटफॉर्म है. मोस्ट ऑफ यू माइट हैव यूज्ड इट एज वेल. आपको पता होगा कि जब भी आप प्रोडक्ट यहाँ से परचेज करते हैं तो आपको यहाँ पे नजर आता है काफी सारे सेलर्स होते हैं. समटाइम्स इवन दिस हैपेंस कि आपने लेट्स से 5 या 10,000 की शॉपिंग की है ना, लेकिन वो शॉपिंग आपने 10 या 15 सेलर्स से की होगी. अब मैं आपको एग्जांपल देने लगी हूँ अपनी, क्योंकि मैंने ऐसा किया है तो बता रही हूँ. अब यकीन करेंगे कि 8 या 10 मुझे जो है ना कोरियर्स रिसीव हुए घर पे. ठीक है, 8 to 10 कोरियर, जस्ट इमेजिन. अब उसमें से सिर्फ एक मेरा कोरियर जो है वो लाइक द प्रोडक्ट वाज समथिंग एल्स. मैंने स्क्रू रेंज नहीं मंगवाया था एक्चुअली, मैंने मंगवाया था पेचकस का जो सेट नहीं होता छोटा सा, मैंने वो मंगवाया. लेकिन आ गया स्क्रू रेंज. मैंने उस जो है ना सेलर की नेगेटिव रेटिंग भी कर दी एज अ बायर. ठीक है, और मैंने दराज वालों को कंप्लेन कर दी. अब दराज चूंकि एक प्लेटफॉर्म था ई कॉमर्स प्रोवाइड करने का, तो व्हाट दे डिड, दे नॉट ओनली रिफंडेड माय मनी, maybe hardly 360 370 rupees, it was not even a big amount. लेकिन साथ मुझे क्या हुआ, उन्होंने कहा जो स्क्रू रेंज आपके पास आया ना, rather than just taking your hassle and sending it back to us, वो आप बेहतर है रहने दें, अपने पास रखें. what they did, they actually skimmed through that seller account, और उन्हें पता चला कि इस seller ने तो अच्छा खासा fraud commit किया हुआ है. you know, that seller has actually wrongly provided wrong products. और ये e-commerce market में बहुत scamming हो रही है, especially in Pakistan. a lot of people are doing this. websites पे display कुछ किया होता है, और जब वो चीज सेल होके you know the customer gets something else, उसका पैसा भी जाया हुआ, टाइम भी जाया हुआ, एनर्जी भी जाया हुई, और इन द एंड ऑफ द डे जो चीज उसे चाहिए थी he does not get it. ये होता है. लेकिन यहाँ पे कसूरवार कौन है? सेलर, ना के सेलिंग प्लेटफॉर्म. जैसे दराज और पीके इज नॉट एट फॉल्ट. ठीक है, फॉल्ट पे कौन है? सेलर. तो ये थोड़ा सा फर्क है. अगर एक ई कॉमर्स वेबसाइट आपकी अपनी है, आप खुद डायरेक्ट सेलर हैं, ठीक है, तो आप डायरेक्टली जो है ना प्रोडक्ट अपनी सेल कर रहे हैं किसी कस्टमर को, आप डायरेक्ट उससे हो रहे हैं या आपकी टीम हो रही है. ठीक है, यू आर हैविंग अ बिजनेस व्हिच इज एक्चुअली डूइंग दैट. लेकिन दराज एक सेपरेट एंटिटी हो जाएगी. ठीक है, व्हिच इज एक्चुअली अ लार्ज यूनिवर्स. जैसे होती है ना प्लैनेट्स होते हैं यूनिवर्स के अंदर, वी हैव गॉट 8 प्लैनेट्स इन द यूनिवर्स. ठीक है, तो वही चीज जो है ना दराज के केस में. ठीक है, Amazon भी यही चीज है. Amazon is the universe of e-commerce if you talk about the international e-commerce. ठीक है, पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करती है Amazon. ठीक है, पाकिस्तान में डायरेक्टली Amazon नहीं आया अभी तक, सिर्फ सेलर अकाउंट आया है. ठीक है, बायर अकाउंट्स भी हैं नो डाउट, लेकिन पाकिस्तान में लोकलाइज्ड Amazon अकाउंट्स नहीं है जैसे दराज का केस है हमारे पास. ठीक है, तो Amazon और दराज में ये डिफरेंस है, और बहुत मेजर डिफरेंस है. कभी मौका मिले जरूर दराज और पीके के इनके अपनी यूनिवर्सिटी मतलब प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया हुआ है, उस पर इन्होंने ट्यूटोरियल्स वीडियोस वगैरह बड़ा कुछ अपलोड किया. डू एक्सप्लोर देम इफ यू वांट टू एंटर ई कॉमर्स थ्रू दराज. ये आपको बड़ा कुछ गाइड करेंगे कि आप किस तरह की प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग एंड सो ऑन. ये मेरी रिलेटेड फील्ड है, यानी IMMB HR तो ये से रिलेटेड होती है. इसमें HR मार्केटिंग मैनेजमेंट कंसल्टेंसी आती है. हर छोटा बड़ा बिजनेस उसको HR भी चाहिए, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी चाहिए, उससे मार्केटिंग भी चाहिए, उससे मैनेजमेंट भी चाहिए. ठीक है, समटाइम्स अगर वो लाइक दे हैव गॉट अ गुड बजट, तो वो अपने पास एम्प्लॉइज हायर कर लेंगे. ठीक है, उन्हें खुद ही जो है ना वो ट्रेन भी कर लेंगे, और उनके थ्रू वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चला लेंगे. But sometimes it does happen that the businesses, you know,
not in position to hire someone on a on a big salary amount. ठीक है, वो हायर नहीं कर सकते. What they do find freelancers for this purpose. freelancers के साथ वो क्या कहते हैं, वो set a contract. जो कहते हैं अच्छा आप हमारे साथ 1 साल काम कर लो, 2 साल काम कर लो, that is a long term contract. ठीक है, या वो शॉर्ट टर्म टास्क आपको दे सकते हैं. ओके, आई हैव गॉट अ पर्टिकुलर टास्क, आई जस्ट नीड इट टू बी डन विद इन अ मंथ और विद इन अ वीक. ठीक है, वो एक पर्टिकुलर छोटा सा टास्क आपको दे दिया और आपने वो कर लिया. दे जस्ट पे यू फॉर दैट. और वो पे ऑब्वियसली इट इज 10 times लेस देन व्हाट दे वुड एक्चुअली बी पेइंग एज अ सैलरी टू समवन हु इज बीइंग एम्प्लॉयड. लेकिन when the company has a good reputation in market, तो फिर वो आपको पे भी अच्छा करेंगे. ये भी होता है. So many times even their offered salaries are also more than the people who are offering less salaries in the same market. ये भी होता है. तो same designations के लिए in one or two companies का अगर हम comparison करते हैं, ठीक है, तो ये भी होता है कि एक की सैलरी 20,000 है, एक की सैलरी 50,000 है. वर्किंग लोड सेम है, वर्कलोड आई मीन सेम है, requirements and everything, job design, job analysis, everything is the same. लेकिन सैलरीज का वेरिएशन फिर भी होगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि अर्निंग एबिलिटी, अर्निंग कैपेसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ मैटर कर रहा होता है. फिर वो जो एक्सपर्टीज आपको दे रहे हैं, दैट आल्सो मैटर्स. द टेन्योर दे आर वर्किंग सिंस, वो भी मैटर कर रहा होता है. तो यहाँ पे आप अच्छी कंपनीज के साथ है ना कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स जो है ना लें, जरूर उस पर काम करें. उससे आपको बहुत अच्छा जो है ना एक्सपीरियंस मिलेगा. एचआर हो, मार्केटिंग हो, मैनेजरियल टास्क हो, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स उस पर देखें. अपवर्क पे आपको बहुत मिलेंगे, बहुत ज्यादा. अब आ जाते हैं एजुकेशन पे, विच इज माय लास्ट डायमेंशन आई एम टॉकिंग अबाउट. एजुकेशन वाइज आप करिकुलम डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, आप कंटेंट डेवलपमेंट कर सकते हैं, यानी कोर्स डिजाइन कर सकते हैं और वो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं. यूट्यूब पे एक पर्टिकुलर एजेंडा है जिसके बाद आप यू जस्ट स्टार्ट अर्निंग मनी. एंड व्हाट दे डिमांड इज द कंसिस्टेंसी एंड देयर इज नो फेवरेटिज्म एट ऑल ऑन यूट्यूब. ठीक है, all the balls are in your court actually in case of YouTube, and same goes with TikTok. ठीक है, अभी मैं आपके साथ ना टिकटॉक की भी डिस्कस करती हूँ थोड़ी देर तक कि मैंने वहां पे कितने सब्सक्राइबर्स हासिल कर लिए और कैसे किए, which is quite interesting to know and share as well. एजुकेशन में ना आप देखें, आप ऑनलाइन स्कूल भी चला सकते हैं. ठीक है, आप ऑनलाइन एकेडमी चला सकते हैं, आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ट्रेनिंग कोर्सेज कंडक्ट कर सकते हैं, आप ऑनलाइन वेबिनार्स कंडक्ट कर सकते हैं. यानी आप कुछ भी कर लें, आप उसे इनकम जनरेट कर सकते हैं. दैट इज ऑल रिलेटेड टू योर एजुकेशन. सिंपल सी मैं बात बताती हूँ, मैं एग्जांपल देती हूँ. आप एक मैट्रिक का स्टूडेंट हैं, फॉर एग्जांपल, आई एम जस्ट गिविंग अ रैंडम एग्जांपल, डोंट टेक इट दैट सीरियस. ओके, सो फॉर एग्जांपल आप मैट्रिक स्टूडेंट हैं. ओके, यू हैव गॉट सम बुक्स विद यू जो आपके करिकुलम का हिस्सा है. व्हाट यू डू, यू जस्ट ओपन अप अ बुक, पुट अप अ कैमरा इन फ्रंट ऑफ यू. कुछ भी नहीं करना आपने, जस्ट कीप अ प्लेन वाइट बैकग्राउंड इन योर बैक. ठीक है, वो आप यूज कर लें. एक दो एप्लीकेशन जैसे काइंड मास्टर है, काइंड मास्टर जो है ना उसका फ्री वर्जन यूज कर लें. ठीक है, और हमेशा जब भी काम स्टार्ट करना फ्री ऑफ कॉस्ट चीज से स्टार्ट करना, दैट्स द ट्रिक. ठीक है, अच्छा, अब काइंड मास्टर एक एप्लीकेशन है जो मोबाइल फोन पे अवेलेबल होती है, वो लैपटॉप पे भी यूज हो जाती है. ठीक है, ब्लू स्टैक्स जो है ना वो एक एप्लीकेशन है. ब्लू स्टैक्स, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये एक एप्लीकेशन है, लैपटॉप्स पे यूज होती है, कंप्यूटर्स पे यूज होती है, जिसके थ्रू आप तमाम एंड्रॉइड एप्स लैपटॉप पे यूज कर सकते हैं. ब्लू स्टैक्स, BLU, ब्लू, STACKS. ठीक है, ये आप यूज कर सकते हैं. और सॉरी, तो इस तरह से चीजें जो है ना, मतलब आपके टूल्स और छोटी छोटी इक्विपमेंट इन चीजों का पता होना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक प्लेन बैकग्राउंड आप रख लें. बैकग्राउंड पे जैसे मेरे बैकग्राउंड पे आपको नजर आ रही प्लेन व्हाइट वॉल है, कुछ भी नहीं है इसके ऊपर. अब मैंने क्या करना है, अगर मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी है, मैं अपने फोन को ऑन करूंगी, इसका कैमरा ऑन करूंगी और कोई सेल्फी स्टिक या कोई इस टाइप की चीज जो है ना वो अरेंज कर लूंगी. उसके अंदर मैं अपना फोन जो है ना वो ऐसे असेंबल कर लूंगी, कुछ भी नहीं करूंगी. ठीक है, और एक आध माइक जो है ना वो अटैच करके ऐसे मैंने ये असेंबल कर लिया. ठीक है, अब ये तो खैर मतलब ट्राइपॉड स्टैंड है ना, ये ऐसे हो जाता है. ठीक है,
कि अगर ये मैं टेबल पे लाइक रख के अपनी हाइट के मुताबिक, फेस के मुताबिक इतना के मतलब लाइक मेरा जो इमेज जितना मुझे रिक्वायर्ड है वो कैप्चर हो रहा हो और मेरी आवाज भी उसमें प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो रही हो। तो मोस्टली मैं इसमें जो वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ तो जो मेरा और इस चीज के बीच में डिफरेंस होता है ना, दैट इज हार्डली यहाँ से लेके कि यहाँ तक होता है इतना। तो उसमें मुझे माइक्रोफोन एक्सेसिव यानी एडिशनली ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो अगर लेकिन मैं नॉइजी जगह पे हूँ तो आई वुड ऑब्वियसली अवॉइड दैट प्लेस। मुझे होगा कि जरा खामोश जगह हो, वहां पे वीडियो आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है, ऐसे आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, कुछ भी नहीं हमने किया, आपने सिर्फ एक बुक ओपन की भी है, अगर आपने उसका कंटेंट कुछ लिखना है, ये आपके पास मार्कर्स हैं, बोर्ड मार्कर है ये बेसिकली, ठीक है, बिकॉज आई टीच एट अ स्कूल। तो बोर्ड मार्कर से आप क्या कर रहे हैं, मुझे से 4-5 कलर्स के मार्कर्स आपने यूज किए, आपने हेडिंग्स लिखी और आपने टॉपिक्स को समझाना शुरू कर दिया। व्हाट यू कैन डू, आपका वो जो टॉपिक है वो इतना क्लियर इनफ होना चाहिए कि जब आप लेट से थोड़ी देर साइड पे होते हैं और आपकी जो कैमरा की स्क्रीन है वो सिर्फ आपके व्हाइट बोर्ड को दिखा रही है बेसिकली बैकग्राउंड में, ठीक है, और उस व्हाइट बोर्ड के ऊपर सारे कॉन्सेप्ट्स आपने एक्सप्लेन किए हुए A to Z। तो व्हाट इज दैट, दैट इज योर ट्यूटोरियल, दैट इज योर एजुकेशनल कंटेंट। उस वीडियो को आप थोड़ा सा हल्का सा ट्वीकिंग करें, थोड़ी सी एडिटिंग करें, अगर उसमें कोई आपने जैसे मिस्टेक कर दी, ब्लूपर्स हो गए, उसको थोड़ा सा आपने कट कर लिया है और उसको आपने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। उसी वीडियो को शॉर्ट क्लिप्स में कन्वर्ट करके 5 मिनट्स ईच आपने टिकटॉक पे अपलोड कर दिया। आपको ऑडियंस क्यों नहीं मिलेगी, मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, सब्सक्राइबर्स भी मिलेंगे, व्यूज भी मिलेंगे, ठीक है। तो कंटेंट आपका ऐसे बनता है। अब एजुकेशन कंटेंट आपका बड़ी मतलब फास्ट डायमेंशन में होता है, आप उसके लिए एप्लीकेशंस भी बिल्डअप कर सकते हैं, आप उसके लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स लॉन्च कर सकते हैं, आप उसके लिए वेबसाइट बेस्ड ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं, आप उसके लिए ऑन साइट एजुकेशनल प्रोग्राम्स आप कर सकते हैं, आप उसके लिए जो है ऑनलाइन, यहाँ से मैं जैसे यहाँ पे बैठी हूँ अपनी अपने घर पे बैठी हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं रिमोटली आपसे बात कर रही हूँ, मैं आप लोगों के पास मौजूद नहीं हूँ, लेकिन वर्चुअली वी ऑल आर एट द सेम प्लेस। यही चीज एजुकेशन में भी होती है अब, बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। ये दो टर्म्स मैं बहुत यूज करती हूँ अपनी हर चीज में एक्चुअली, ठीक है। ये होती है आपकी एजुकेशन एक्सप्लोरेशन। अब अगला सवाल है कि हमने फ्रीलांसिंग क्यों करनी, दैट्स द बेसिक क्वेश्चन जो हमें से अक्सर के ज़हन में आता है। हम पाकिस्तानी होने के नाते हम जानते हैं हमारी मुल्क के क्या सूरत हाल है, ठीक है, हम 74 या 5 ईयर्स जितने भी अब हो जाएंगे, ठीक है, उससे हमारे कंट्री की क्या सिचुएशन है, हमारा फॉरेन रेवेन्यू कितना है, हम सब न्यूज में सुनते हैं, ठीक है, हम डेप्थ में नहीं जाते, लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। हमें पता है कि हमें अभी भी बहुत चीजों में काम करने की जरूरत है, ऐसे ही है। तो यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं फ्रीलांसिंग की कि हमें फ्रीलांसिंग क्यों चाहिए, पहले तो हमने एक्सप्लोर की डायमेंशन, अब हम पूछ रहे हैं एक दूसरे से कि अच्छा हमें फ्रीलांसिंग क्यों चाहिए, ये क्यों जरूरी है। एक फैंसी टर्म है, ठीक है जी, आप कुछ इनकम अर्न कर लेंगे, ये 9 डायमेंशन 8 डायमेंशन है, इनके थ्रू आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल आपके जहन में आता है कि क्यों चाहिए फ्रीलांसिंग। तो जनाब आप ऑब्वियसली इफ यू आर वर्किंग विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स यू आर बिल्डिंग सॉरी यू आर ब्रिंगिंग डॉलर्स इन पाकिस्तान। है कैसा कि नहीं, मैं एक सेकंड के लिए पॉज करती हूँ और मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, ऐसा है कि नहीं, लाइक इफ यू आर सर्विंग योर इंटरनेशनल क्लाइंट्स आर यू अर्निंग डॉलर्स और नॉट, Yes, of course. यू विल, है ना ऐसे, तो वुड दैट बेनिफिट पाकिस्तान इन द एंड ऑफ द डे और नॉट, Yes. इट विल, है ना, ठीक है। अब जाहिर बात है जब आपने डॉलर अर्न किया वो डॉलर आपके पेयोनियर अकाउंट पे आता है, क्योंकि पेयोनियर से आप उसको जैज कैश पे भेज देंगे या उसको डायरेक्ट अपने पाकिस्तानी किसी भी बैंक अकाउंट में भेज लेंगे, आ जाता है इजीली, इनकम आपकी डॉलर से पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट होती है। अब वो जो डॉलर है वो कहाँ जा रहा है, दैट इज गोइंग टूवर्ड्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो फॉरेन रिजर्व किसके पास जा रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास डॉलर्स जा रहे हैं। तो अगर रुपी के अगेंस्ट डॉलर जो है वो पाकिस्तान के पास ज्यादा आ रहा है तो रुपी की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, यस और नो, मतलब बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी, वेल डन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें ज्यादा से ज्यादा फ्रीलांसिंग करने की जरूरत है, कि हमें ज्यादा से ज्यादा डॉलर्स कमाने हैं, वो कमाएंगे तो ही हम अपने मुल्क के लिए कुछ
मतलब कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। 100% तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो कर सकते हैं, अपना हिस्सा तो हम अदा कर सकते हैं कि नहीं? डेफिनेटली कर सकते हैं। गुड, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ, ठीक है। ऑब्वियसली वट एवर यू आर डूइंग, आप उसके इन द एंड ऑफ द डे आप कुछ लर्न कर रहे हैं, ठीक है, और वही चीज आप आगे शेयर कर रहे हैं, वेदर दैट इज विद अ क्लाइंट, वेदर दैट इज विद अ कस्टमर, वेदर दैट इज विद योर इंटरनेशनल ऑडियंस। अगर आपने यूट्यूब पे कोई चीज अपलोड किया तो योर ऑडियंस इज इंटरनेशनल, you are not limiting that content to Pakistan only. Even if let's say you are uploading something that is in Urdu, do you think कि सिर्फ पाकिस्तानीज वो सुनेंगे? नहीं, इंडियंस भी सुनेंगे, मे बी कोई श्रीलंका से ऐसा हो जिसे उर्दू आती है वो सुन लेगा, बांग्लादेश में बहुत लोगों को उर्दू आती है वो सुन लेंगे, नेपाल है वहाँ कई लोगों को उर्दू आती है वो सुन लेंगे, अफगानिस्तान में लोगों को उर्दू आती है, ठीक है, चाइना में बहुत सारे लोग हैं जो उर्दू जानते हैं। ये तो आपके सराउंडिंग्स है। पूरी दुनिया में देख लें, कनाडा, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन है, इटली है, बहुत सारे आपके बाहर के मतलब जो द फॉरेन कंट्रीज, यू नो, many foreigners are living over there, you know, sorry foreigners कह रहे हैं, overseas, ठीक है, ओवरसीज यानी कि जो पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोग हैं उन्हें ओवरसीज कहते हैं हम, ठीक है, वो वहां पे रह रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो उर्दू तो जानते हैं, जाहिर बात है, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं पाकिस्तान से कनेक्शन तो है, ठीक है, वो पाकिस्तान आते भी रहते हैं, या उनमें से कोई ना कोई फैमिली मेंबर उनका आ जाता है, तो या वो इंटरनेट पे कोई ना कोई कंटेंट देख लेते हैं दैट इज रिलेटेड टू उर्दू, और दैट इज इन उर्दू एक्चुअली, उन्हें समझ आ जाती है कि अच्छा जी ये उर्दू में बात हो रही है और ये बात हो रही है। तो ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे जो टेक्निकल और प्रैक्टिकल नॉलेज है वो आप शेयर कर रहे हैं दूसरों के साथ, whether that is being shared with a client, whether that is being shared with a customer or with anyone else, ठीक है, तो आपको ये मतलब फायदा रहता है। फिर सेल्फ डिपेंडेंसी है। सेल्फ डिपेंडेंसी मतलब कि लाइक यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल अराउंड यू, लाइक यू कैन इजीली generate money for your own self. You need money for something. I mean, let's say मुझे example लेनी है, like I need to buy a marker and I don't have a money. Sorry, I don't have money to buy it. So I would say, okay, rather than just asking for money from someone else, why not if I just do a work, you know, and earn some income, maybe 500,000 rupees भी मेरे लिए काफी होगा। तो मेरे पास काफी सारे ऐसे ना अच्छे अच्छे मार्कर्स आ जाएंगे, स्टेशनरी की चीजें आ जाएंगी, so you know that is going to help me out for my work, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना मैं अपनी जरूरत को पूरा कर सकती हूँ। and same goes with everyone who is doing freelancing, start आप हमेशा जीरो से कर रहे होते हैं, तो you know your income is always low, उस पर कभी भी टेंशन नहीं लेनी जिंदगी में, हमेशा आगे बढ़ने के लिए आपने जीरो से स्टार्ट करना होता है, तो आपकी इनकम भी जीरो से स्टार्ट होती है ऑब्वियसली, ठीक है, यानी लो इनकम से स्टार्ट होती है। अच्छा, अब आ जाए वुमेन एम्पावरमेंट पे, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। फीमेल्स को बहुत हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं हमारी सोसाइटी में, ठीक है, मैं इसके ऊपर काफी सेशंस में ये बात कर चुकी हूँ। आई ट्रिपल ई कॉमसैट्स इस्लामाबाद के सेशन में भी मैंने इस पे बात की, मेरा अपना जो थीसिस है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का, मैंने उसमें इस चीज को डिस्कस किया हुआ है, एड्रेस किया, मैंने कॉन्फ्रेंस पेपर उसी का प्रेजेंट किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ही का जो है ना एक क्या कहते हैं सेशन था, सेशन में नहीं आप कहेंगे, आप कहेंगे वो कॉन्फ्रेंस थी एक्चुअली, उसी में मैंने रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया, फिर वही कॉन्फ्रेंस पेपर मैंने एक और टर्किश कॉन्फ्रेंस थी वहां भी प्रेजेंट कर दिया। मतलब काफी जगह मैं बताना चाह रही हूँ मैंने इस पे बात की, और क्यों की है, इसलिए कि लोग सुने, लोगों को पता लगे कि ये चीज इम्पोर्टेंट है टू टॉक अबाउट, टू डिस्कस, ठीक है, वही चीज मैं अपने सोशल मीडिया पे भी डिस्कस करती रहती हूँ। विमेन एम्पावरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम अपनी लाइफ में देखते ही नहीं है मोस्टली। हम अक्सर अपने घरों में देखते हैं, हमारी मदर्स हैं, हमारी फैमिली में जो मतलब फीमेल्स हैं जो मतलब लाइक दे आर एजिंग फास्ट। क्यों एजिंग फास्ट हो रहा है? दे डोंट हैव द मी टाइम फॉर देमसेल्व्स। तो अगर लेट्स से कोई ऐसी फीमेल है जो कहती है आई नीड टू हैव अ मी टाइम, और वो कहती है ओके इन दैट मीन मी टाइम मीन्स के मुझे मेरे अपने लिए, मेरी अपनी जात के लिए टाइम चाहिए, ठीक है, इन दैट केस यू वुड से ओके एज अ फ्रीलांसर आई कैन डेफिनेटली हैव माई मी टाइम। अच्छा, मुझे पता है मैं खुद से पैसे कमा रही हूँ, अपने पाँव पे खड़ी हो गई हूँ, मेरा मी टाइम है, ठीक है, कि मुझे चीजें एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है, मैं चीजों को सीख रही हूँ, मैं मतलब एक कंट्रीब्यूशन कर रही हूँ इकोनॉमी में, मैं अपने लिए इनकम जनरेट कर रही हूँ, तो मेरा मी टाइम है, ठीक है, मैं उसको एक्सप्लोर कर रही हूँ।
ठीक है। अब वो मी टाइम आपका लाइफ में वेरी करता रहता है, ठीक है। तो कभी लाइक इन द स्टार्ट ऑफ मैरिज, ठीक है, आपके पास चैलेंजेस ज्यादा होते हैं, ठीक है, फिर बच्चे हो जाते हैं, और उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेफिनेटली बढ़ तो रही थी, कम नहीं होती, लेकिन you still get more me time as compared to what you are supposed to get when your kids are really small, itne small like they are below 2 years age, or they are requiring your attention 24/7, वो हर वक्त आपकी अटेंशन मांगेंगे, यू आर लिटरली स्टिकिंग टू देम, और आप जो है ना, neither you are able to look at your phone on time, आप क्लाइंट्स को भी टाइम पे नहीं देख पा रहे होते एंड सो ऑन। लेकिन क्या होता है कि दैट्स द ट्रिक फॉर वुमेन व्हिच आई ऑलवेज टेल देम टू डू, कि अपने काम को आपने स्टॉप नहीं करना, स्लो डाउन कर लेना है, क्लाइंट्स को बता दें ओके दिस इज योर स्केड्यूल एवरी डे, ठीक है। तो आप को वो मैसेज क्वेरीज अपनी इनबॉक्स कर दिया करें, एंड इन एवरी फ्री टाइम दैट यू गेट विच यू आर सपोज टू गेट, एक्चुअली अपने टाइम अपने लिए आपने खुद निकालना है एज अ फीमेल, अगर आप फीमेल हो तो, ठीक है। तो आप ये वुमेन एम्पावरमेंट इस तरह से आती है फ्रीलांसिंग से, ऑब्वियसली कि यू आर अर्निंग समथिंग, और आपका अपने आप पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आप अपने घर में कंट्रीब्यूशन कर सकती हैं, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकती हैं, उनको भी पता चलेगा कि अच्छा मेरी जो माँ है वो बहुत अच्छी एजुकेशन हासिल कर रही है। और ऐसी फीमेल्स हों जो मतलब जिनकी कल को शादी होनी है, खैर से अल्लाह ताला सबके नसीब अच्छे करे, आमीन, चाहे वो मेल्स हैं या फीमेल्स हैं, तो उनके लिए भी एक वो जो है ना बहुत अच्छा मैसेज होता है कि वो अपने आप को इतना एस्टेब्लिश कर लें कि आगे उनकी जनरेशन्स उनके ऊपर फख्र करें कि हमारी माँ या हमारे बाप ने इतनी मेहनत की है अपनी जिंदगी में, ठीक है। ये चीज होती है फ्रीलांसिंग। फिर ये नीड ऑफ द आवर है, ठीक है, यानी ये जरूरत है, इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। यानी आप लेट्स से आपको नहीं पता आपकी आज जॉब है कल नहीं है, लेकिन अगर पैरेलल पे फ्रीलांसिंग चल रही है तो यू आर सिक्योर फ्रॉम वन एंड एज वेल, ठीक है। फिर आप उसी को एक्सप्लोर करते करते इनकम स्ट्रीम्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाते हैं, तो यू जस्ट कीप ऑन सिक्योरिंग योर ओन सेल्फ इन अ बेटर वे, ठीक है। फिर ये आती है जर्नी फ्रॉम सिंपैथी टू एम्पैथी। ये होता है कि आपकी जिंदगी में ना एक फेज ऐसा आता है कि हर कोई ना आप पे तरस खा रहा होता है, हर कोई आपको कह रहा होता है कि हाय बेचारा, हाय बेचारी, ये तो इसके साथ तो बड़ा बुरा हुआ, इस तरह करके ना आपको हर्ट कर रहे हैं, इस तरह की बातें करके, या वो आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी सिचुएशन को मिस हैंडल करने की कोशिश करते हैं, दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट यू, दे आर ट्राइंग टू मिस यूज यू, दे आर ट्राइंग टू यू नो ट्रीट यू लाइक अ पपेट, ठीक है। आपके साथ ऐसा होता है लाइफ में, हर किसी के साथ होता है, ये नहीं कि सिर्फ आपके साथ, मेरा मतलब है हर किसी के साथ, इवन मी, होता है। लेकिन फिर क्या होता है कि आप अल्लाह ताला पे भरोसा करते हैं, आंखें बंद करके अल्लाह ताला पे भरोसा करते हैं, एतमाद करते हैं अपने ऊपर, अपने इंस्टिंक्ट पे बिलीव करते हैं, और आप कहते हैं कि मैं जीरो नहीं हूँ, इवन इफ एनीवन अराउंड मी सेज आई एम जीरो, आई एम नॉट जीरो, आई एम समथिंग, ठीक है। आई एम नॉट एवरीथिंग, आई कैन नेवर बी एवरीथिंग, बट आई एम समथिंग। जिंदगी में ये नहीं कभी भूलना, हमेशा ये याद रखना है, आपने कहना है आई एम समथिंग, आई एम समथिंग। एवरीथिंग भी अल्लाह ताला ने अगर चाहा तो आप बन जाएंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं, अल्लाह ताला के हाथ में ही है चीज, लेकिन किसी बंदे के हाथ में नहीं है, कोई बंदा आपको पपेट नहीं बना सकता, नेवर। अच्छा, फिर एक ना आपका फेज आता है एम्पैथी का, कि आप इतना अर्न करने लग जाएंगे या इतना आपने सक्सेस अटेन कर लिया होगा कि आप बजाय इसके कि और वही लोग जो आपको बुरा भला कह रहे थे या आपको मिसयूज कर रहे थे, सिंपथाइज कर रहे थे आपसे, वही बंदे आपके पास आएंगे, आपको प्रेज भी करेंगे और आपसे फेवरेटिज्म मांग रहे होंगे चीजों के लिए, ठीक है, आपसे मदद मांग रहे होंगे, ये मेरा जरा ये काम कर देना, वो काम कर देना, ठीक है। तो व्हाट यू डू एक्चुअली, आप कहते हैं 100 बिस्मिल्लाह, 100 बिस्मिल्लाह, अच्छा आपका ये काम है, जी हो जाएगा, 100 बिस्मिल्लाह, 100 बिस्मिल्लाह, खुशी खुशी हंसते मुस्कुराते आप वो काम कर देंगे, ठीक है। जरा आपके दिल में मलाल नहीं आएगा, नेगेटिव फीलिंग नहीं आएगी कि इस बंदे ने तो मेरे साथ अच्छा किया ही नहीं था, मेरा तो उसूल बनता है मैं इसके साथ कुछ फेवर करूँ ही ना, लेकिन आप कहेंगे नहीं, क्या फर्क पड़ता है अगर उस बंदे ने मेरे साथ बुरा किया है, अल्लाह ताला ने मुझे इतना मुकाम तक पहुंचाया है, तो क्यों ना मैं अच्छा बन जाऊं, क्यों मैं परवाह करूं कि मेरा दुश्मन कौन है, मैंने अपने दुश्मन के साथ भी दोस्ती की तरह से बिहेव करना है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एम्पैथी, ठीक है। आप अच्छा हो बंदा या बुरा हो, आप परवाह नहीं करेंगे कि वो बंदा कैसा है, आप उसकी मदद करने पहुंच जाएंगे, जस्ट बिकॉज यू हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट इन योर लाइफ,
and you have attained your success that you always dreamt of, and now you want to help everyone around you. ये है, इस वजह से फ्रीलांसिंग आपके लिए जरूरी है, आप यानी कि हर किसी के लिए इंक्लूडिंग मी। अब फ्रीलांसिंग स्किल्स को आप ग्रूम कैसे कर सकते हैं? ऑब्वियसली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपको सर्टिफिकेशंस चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ और अभी भी कहूंगी कि हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्सेज से काम स्टार्ट करते होते हैं। कभी भी ये नहीं करना कि मैं फलानी चीज पे पैसा लगा लेती हूँ या लगा लेता हूँ, मैं उसको उस कोर्स को परचेज कर लूँ, ये कर लूँ, नहीं। आप अभी इनकम ही नहीं जनरेट कर रहे और आप अभी परचेजिंग की बात कर रहे हैं। नो, जनरेट एन इनकम फर्स्ट, ठीक है, बिल्ड एन ऑडियंस, build a decent audience, ठीक है, for your own self, which is helping you earn a good income stream, and then you can continue to buy things for you, ठीक है। लेकिन before that you are relying on free certification and free resources, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी टिप क्या है आपके लिए? ये सारा कंटेंट जो भी आप बना रहे हैं, जैसे मैंने एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दी थी एजुकेशनल वीडियो की, मैं फॉर एग्जांपल मिसाल दे दूं, मैं मैट्रिक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने क्या कंटेंट एजुकेशनल अपलोड करना है, लेकिन मुझे पता है मुझे एजुकेशनल कंटेंट चाहिए। मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मैं सिर्फ एक मोबाइल फोन ले लूंगी जो कि मेरे पास मोस्टली हर किसी के पास होता है, अच्छा बुरा कैमरा डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स एक्चुअली इज कि वो जो कैमरा स्क्रीन है वो एटलीस्ट कामयाब हो जाए आपका फेस दिखाने में, कि लाइक it should have you in the screen, ठीक है, and it should also show the background, especially let's say if I'm talking about the whiteboard, ठीक है, या वो अगर एक स्क्रीन शेयर है, प्लेन स्क्रीन शेयर with presentation running on it, वो भी आप उसको जो है एक्सपोर्ट करके जस्ट अपलोड दैट, ठीक है, with your voice over, उसको YouTube पे अपलोड कर दें तो ऑडियंस आपके पास खुद आती है, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू टीच समथिंग एंड ऑडियंस might have so many people in them who want to learn something from you, वो ऐसे ही आपके पास आएंगे। YouTube की पॉलिसी क्या होती है कि वो कहते हैं कि within a year you need to have uh, at least 4,000 watch hours and 1,000 plus subscribers। अब वो सब्सक्राइबर्स तो लाइफ टाइम होता है ऑब्वियसली, इट्स नॉट लाइक एक साल में 1,000 है एक साल में कम हो, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। वो सिर्फ आपके कंसिस्टेंट रहने चाहिए, दैट डजंट मैटर, बट in case of watch hour, if you talk about you know okay, so वॉच आवर्स जो है ना वो आपके मैटर कर रहे होंगे फॉर अ ईयर, ठीक है, और वो आपने कैसे करना है, आप मैं आपको ना स्क्रीन शेयर में एंड पे दिखाऊंगी अपनी यूट्यूब वीडियोस, और मैं ये मेंशन कर रही हूँ कि मैंने काम रिसेंटली स्टार्ट किया है तो मेरे सब्सक्राइबर्स इतने कोई खास नहीं है, बट आई नेवर माइंड, मैंने पहले भी बताया था कि मैं काम जो है ना वो मैंने फोकस अपना शिफ्ट करके टिकटॉक पे कर लिया है, वहां पर यस आई एम डेफिनेटली गेटिंग ऑडियंस एंड यू नो इन द बल्क सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं मेरे पास, हर घंटे के बाद मेरे पास 30, 20, 40 सब्सक्राइबर्स आई जा रहे हैं। व्हाट आई एम डूइंग, कुछ भी नहीं कर रही, मेरी अपनी यूट्यूब पे पड़ी हुई वीडियोस ही वही उठा के उसके छोटे छोटे क्लिप्स बनाए एंड आई एम जस्ट अपलोडिंग दोस क्लिप्स ऑन टिकटॉक। और अभी जस्ट इमेजिन लाइक बिफोर अ मंथ 80 सब्सक्राइबर्स थे, सॉरी फॉलोअर्स थे टिकटॉक पे, ठीक है, कुछ भी कंटेंट खास मेरा नहीं था वहाँ पे, और उसके बाद अब टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है, करंटली मेरे 1200 से ऊपर क्रॉस कर गए विद इन अ मंथ। किया मैंने क्या है, वही यूट्यूब वीडियोस जो बेसिकली मेरी जो है मतलब ऑडियंस जनरेट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, यूट्यूब पे मे बी कोई भी लैग्स हो सकते हैं मेरी एंड से, लाइक मुझे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छी नहीं करनी आ रही होगी, मुझे ऑडियंस वहां पे बिल्ड नहीं करनी आ रही होगी, मेरी तरफ से फेलियर हो सकता है डेफिनेटली, और फेलियर्स होते हैं, ठीक है, तो वही चीज अगर मैंने यूट्यूब पे अपलोड नहीं वही चीज मतलब फेसबुक पे की और लॉन्ग वीडियो थी, फेसबुक पे भी इतना अच्छा कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था, थोड़ी सी एंगेजमेंट आती थी, लेकिन जब मैंने उसको क्लिप्स में कन्वर्ट किया, 5 5 मिनट्स के क्लिप्स बना दिए, मोर ऑडियंस स्टार्टेड वाचिंग देम। उससे मुझे एक आइडिया तो हुआ कि ऑडियंस आपकी लॉन्ग क्लिप्स जो है ना वो नहीं देखती, उनके पास इतना टाइम नहीं है, या उनका इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं हो रहा होता, या उनको आपके बारे में पता नहीं होता, दे आर न्यू टू यू, दे आर जस्ट काइंड ऑफ एक्सप्लोरिंग यू। तो एक्सप्लोर करने वाला बंदा आपकी 1 आवर की वीडियो तो देखेगा नहीं,
उसने आपकी 5 मिनट्स की वीडियो जरूर देखनी है अलबत्ता, क्योंकि उसको 5 मिनट्स में वो इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आप उससे 1 आवर में देना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आपने वो इन्फॉर्मेशन उसे जल्दी दे दी 5 मिनट्स में, तो वो आपकी वीडियो दोबारा देखने आएगा। ठीक हो गया? अब वो ये होती है एंगेजमेंट। और ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये है कि आपने अपनी मार्केटिंग जरूर करनी है, सेल्फ मार्केटिंग। इसको नेगेटिव मत लीजिएगा कभी अपनी जिंदगी में। आप अपनी सेल्फ प्रमोशन इस तरह नहीं करें, मैं ये करता हूँ, मैं फैमिली लाइफ को उठा के अपलोड करना शुरू करता हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट। प्रोफेशनल लाइफ के बारे में डिस्कस करें, अचीवमेंट्स के बारे में डिस्कस करें, लाइक इफ यू गेट एन अवार्ड, इफ यू गेट अ सर्टिफिकेशन, डेफिनेटली मेक अ वीडियो और मेक अ शॉर्ट पोस्ट अबाउट इट ऑन फेसबुक एंड लिंक्डइन। अपनी ऑडियंस वहां पे बिल्डअप करें, ठीक है, अपने आप को मार्केट करें, अपने बारे में बताएं कि अच्छा आप ये टास्क करते हैं, ये काम करते हैं। पोर्टफोलियो आपका यूट्यूब पे अपलोड हुआ हो, वही से आप रीशेयर करते जाए फेसबुक पे भी और लिंक्डइन पे भी। ठीक है, उसके बाद आपने ऐसे कोई क्लेम नहीं करना जो आप कंपनसेट ना कर सकते हो। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसी बात करते हैं जो आप 10 दिन बाद आपको कोई रिमाइंड कराए कि आपने तो ये कहा था आप ये कर देंगे, लेकिन आपने तो ये किया नहीं। तो आपने ऐसा कुछ नहीं करना, ओवर कमिट भी नहीं करना, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। पाकिस्तानी बहुत ज्यादा ये करते हैं, ओवर कमिट भी कर जाते हैं और ऐसे क्लेम्स करते हैं जो वो कंपनसेट नहीं कर सकते, फुलफिल नहीं कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पाकिस्तानी में बहुत कमी है। लेकिन अगर हम इस पे वर्किंग करें तो हम इंटरनेशनल ऑडियंस का बहुत ट्रस्ट बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली वो फिर हमें ज्यादा काम देते हैं। डेडलाइंस जो है ना, अगर उन्होंने टाइम फ्रेम दिया हुआ है कि जी ये पर्टिकुलर डे है और उस पर आपने उनको काम देना है। और वर्क एथिक्स क्या होती है कि लाइक हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग फ्रॉम ए टू जी। अगर आप बात की जाए हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर क्लाइंट, ठीक है, पहली चीज तो ये है कि अगर आपकी इंग्लिश टूटी हुई भी है, टूटी मीन्स के ब्रोकन, ब्रोकन मीन्स के आपको एग्जैक्ट ग्रामर नहीं यूज करनी आती, दैट डज नॉट मैटर, स्पेशली इफ यू आर टॉकिंग टू अ क्लाइंट। आपको अगर अपनी बात समझानी आ रही है और आपकी बात में प्यार झलक रहा है, कर्टेसी झलक रही है, रिस्पेक्ट शो हो रही है, आपकी बात भी कंप्लीट है, उसमें आपको जो क्लाइंट है या जो कस्टमर है उसको सारी बात समझ आ रही है और जो आप चाहते हैं कि वो रिस्पॉन्स दे उसके मुताबिक आपका उससे जो है ना बातचीत का तरीका है, तो वो डेफिनेटली आपको ज्यादा काम देता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट। अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग अक्सर मिस कर जाते हैं, हम लोग जज्बाती कौम है। ठीक है, हम लोग रिलीजन पे भी बहुत बात कर रहे होते हैं, पॉलिटिक्स पे भी बहुत बात कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जाहिर बात है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एग्जिस्ट कर रहा होता है, किसी की सोच क्या है, किसी की क्या, यू नेवर नो। ठीक है, कोई आपकी पॉजिटिव कही हुई बात को भी या इंटेंशन को भी नेगेटिव समझ लेता है, आपको नहीं पता होता। कोई बात में रिएक्ट थोड़ा करता है, कोई ज्यादा करता है। तो किसी भी एम्बिग्विटी से बचने के लिए बेहतरीन ये रहता है कि आप इस तरह की कोई बात ही ना करें, कोई चीज ही ना डिस्कस करें जहाँ पे कोई एम्बिग्विटी जनरेट हो या डुअल मीनिंग्स आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आप रिलीजियस बिलीव्स रखते हैं, ठीक है, आप ये जरूर अफर्मेटी रखें कि व्हाट बिलीव्स यू हैव गॉट, यू हैव देम, ठीक है, एंड यू आर फाइन विद देम। लेकिन किसी दूसरे का कोई और बिलीफ है, ही और शी शुड बी फाइन विद दैट। आप उसको मतलब लाइक यू आर सपोर्टिंग फॉर द को एग्जिस्टेंस कॉन्सेप्ट, ये मेरा यहाँ पे मतलब है। तो सोशल मीडिया पे भी वी आर सपोज टू को एग्जिस्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, पॉलिटिकल डिबेट्स अगेन, इस पे भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं बिला वजह, दोस्तों में लड़ाई हो जाती है, बहन भाई में लड़ाई हो जाती है, क्या फायदा होता है, इन द एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं होता। ठीक है, और क्या होता है कि आपके अच्छे रिलेशनशिप्स खराब हो रहे होते हैं। सेम गोज विद यू नो गेटिंग योर क्लाइंट्स और कस्टमर्स, वो भी आपको लाइफ लॉन्ग जो है ना वो रोल मॉडल बेंचमार्क के तौर पे देख रहे होते हैं। so if you are avoiding these things, so you will always be secure and you will be far far away from any kind of controversy। ठीक है, कोई आपकी किसी भी बात को नेगेटिवली ले ही नहीं सकता, कोई आपके बारे में नेगेटिव कुछ अज्यूम ही नहीं कर सकता, नो मैटर व्हाट इवन योर एनिमीज आर ट्राइंग टू डू, उनके पास कोई नेगेटिव पॉइंट ही नहीं होगा आपके अगेंस्ट। अवॉइड डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एंड अडॉप्ट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी लाइफ में ये भी आपने अडॉप्ट करना है हमेशा। आपने किसी चीज को क्रिटिसाइज करना है तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये चीज तो है ही खराब, ये तो कभी ठीक हो ही नहीं सकती, ये तो बंदा ही ठीक नहीं है, ये तो बंदा ही खराब है, ये कंपनी ही फजूल है, इसका तो कोई पर्पस ही नहीं है, ये तो प्रोडक्ट्स ही बहुत फजूल बनाते हैं, ये तो डिजर्व ही नहीं करते कि मार्केट में एग्जिस्ट करें, ये तो ई कॉमर्स स्टोर ही खराब है, ये हमेशा गलत प्रोडक्ट्स हमें सेंड करते हैं।
रादर यू वुड से ये सेलर जो है इसको काउंसिल करने की जरूरत है। इसको पता होना चाहिए कि मुझे क्या प्रोडक्ट सेल करनी है, क्या नहीं करनी, मुझे किस क्लाइंट ने मतलब सुनना है, वगैरह वगैरह, ये चीज। फिर अपनी क्रेडिबिलिटी को आपने बिल्डअप करना है सोशल मीडिया पे, ठीक है। लाइक अगर मैं आपके सामने यहाँ पे आज बात कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं क्रेडिबल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तभी मुझे मौका मिला कि मैं आपसे कुछ बात कर सकूं, कुछ आपके साथ अच्छा टाइम शेयर कर सकूं, टाइम स्पेंड कर सकूं, ठीक है। और मेरी क्रेडिबिलिटी इसलिए भी इम्पोर्टेंट थी या है कि मैं जो भी बात करूं उसमें वजन होना चाहिए, ठीक है। मैं अगर कोई मतलब ऑडियंस ना रखती होती या मेरी कोई एक्सिस्टेंस ना होती और मैं आपके सामने ये चीजें डिस्कस करने आ जाती जिनका मेरे पास एक्सपीरियंस ही कोई नहीं है, तो एक टाइम ऐसा आता यू वुड हैव फेल्ट कि ये तो बंदा इनएक्सपीरियंस्ड है, इसे तो कुछ पता नहीं है, तो हम इससे क्या सीखेंगे। हमेशा सीखें उस बंदे से जिसके पास कुछ एक्सपीरियंस है, चाहे वो थोड़ा एक्सपीरियंस हो चाहे वो ज्यादा एक्सपीरियंस हो, लेकिन अगर वो एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस से ज्यादा है तो उससे जरूर सीखें। लाइकवाइज अगर आपका एक्सपीरियंस किसी चीज में मुझसे ज्यादा है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मैं आपसे वो चीज सीखने होंगी, और मुझे वो सीखनी है। क्यों? क्योंकि हम सब सीख रहे हैं। वी ऑल आर द लर्नर्स इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। टिल डे ऑफ जजमेंट ये प्रोसेस चलता रहना है। वी ऑल आर लर्निंग फ्रॉम वन अनदर, किसी को ज्यादा पता है किसी को थोड़ा पता है, वी ऑल आर सपोर्टिंग ईच अदर, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए कि हम एडिशनल स्किल्स कौन से हासिल कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं होता कि आप इनको मार्केट कर रहे हैं हर दफा, ठीक है, लेकिन आप इनके बारे में जरूर कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दें, जो मैं करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग इज नॉट माई फील्ड, लेकिन मुझे शौक है कुकिंग करने का। मैंने अपनी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दी, पराठा कैसे बनाते हैं, वो भी बल वाला पराठा है, एक समथिंग विच इज क्वाइट डिफरेंट देन द यूजुअल पराठा, मैंने अपलोड कर दी। पेट कीपिंग पे कई लोग वीडियोस अपलोड कर रहे होते हैं, अच्छा मतलब दे हैव अ पेट और उसको जो है ना वो कैसे मेंटेन कर रहे हैं उसको, वो किस तरह से उसका खेल रहे हैं वगैरह वगैरह, वीडियोस बना लेते हैं। ड्राइविंग टिप्स लोग देते रहते हैं, often they do this। और बहुत सारी हॉबीज के ऊपर वो वीडियोस बना रहे होते हैं। तो दीज आर योर साइड हॉबीज और साइड स्किल्स, ये जरूर आप करते रहा करें, वीडियोस अपलोड करते रहा करें, ऑडियंस का इंटरेस्ट बिल्डअप होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे पाकिस्तानी ऐसे जो है ना उनकी होप लूज हो जाती है। ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग इन योर लाइफ, नेवर लूज होप एवर। बहुत सारे ऐसे वक्त आएंगे जब आपके पास कोई क्लाइंट नहीं होगा या कोई व्यूअर नहीं होगा, कोई आपके पास कस्टमर नहीं होगा, यू आर लिटरली वर्किंग डे एंड नाइट फॉर सो मेनी आवर्स, सो मेनी डेज, you are literally awake for so many um, times in your life when you are actually badly craving for someone to actually see your content। कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन आपने काम नहीं रोकना, आपने चलते जाना है, चलते जाना है। बहुत दफा ऐसा भी होगा आपकी फ्रेंड्स और फैमिली में, लाइक व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल, उनको लाइक नजर नहीं आ रहा ना, ऑब्वियसली दे जस्ट नीड टू सी समथिंग इन योर हैंड्स, एंड व्हाट इज दैट? मनी। मनी टॉक्स, ये तो आपने सुना होगा, मनी टॉक्स। तो मनी के लिए आपने, जाहिर बात है, जो बैकग्राउंड पे जो आप वर्किंग कर रहे हैं उनका उससे कोई कंसर्न नहीं है, अनलेस दे आर योर सिंसियर फैमिली और फ्रेंड्स, ठीक है। सिंसियर है ना अगर आपसे, तो आपकी एक एक स्ट्रगल में आपके साथ होंगे, मोरल आपका बूस्ट करते रहेंगे। नहीं है तो दे विल बी मीन टू यू एक्चुअली, ठीक है। फिर उनको सिर्फ ये होगा कि आप कितना अर्न कर रहे हो, कैसे अर्न कर रहे हो, उससे उनका कोई कंसर्न नहीं होगा, ठीक है। वो सिर्फ person A is earning this much particular money, person B is earning less money, वो person A के पास चले जाएंगे, आपके पास नहीं आएंगे, you are the person B। तो होता है ऐसे, ठीक है। और ऐसा होता है कि वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे होंगे, फैमिली हो या फ्रेंड्स हो, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है आपकी जिंदगी में कि आपकी पूरी लाइफ अपसाइड डाउन हो जाती है और लोग आप पे यकीन भी नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, लाइक यू आर लिटरली जीरो एट दैट सिचुएशन। आपको होता है कि कोई तो मेरी केयर करे, कोई तो मुझे सुने, नो वन इज देयर टू लिसन। आंखें बंद करनी है उस टाइम और सिर्फ अल्लाह को याद करना है, क्योंकि अल्लाह इज योर बेस्ट फ्रेंड, ही इज नेवर गोइंग टू लीव यू नो मैटर व्हाट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस सब टेरिबल सिचुएशन के बावजूद कभी कभी ऐसा होता है, बल्कि कभी नहीं हमेशा ही ऐसा होता है, मैं ये कहूंगी कि कोई ना कोई एक ऐसा बंदा आपको जरूर मिल जाता है, चाहे वो आपको यूट्यूब पे मिल रहा है एज अ मेंटोर,
या वो कोई फिजिकल इंटरेक्शन के थ्रू बंदा मिल रहा है आपको, जो आपको कोई एक बात कह जाएगा, ये कोई एक सेशन आपके साथ कर जाएगा और लिटरली आपकी सारी लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है। इट डज हैपन एंड इट हैपेंड विद मी बैक इन 2012, बल्कि 2009 में। मुझे फ्रीलांसिंग का नहीं पता था, आई वांटेड टू स्टैंड ऑन माय फीट, ठीक है, आई वांटेड टू बूस्ट माय मोरल। 2009 वाज दैट day when I sorry year when I came to know about freelancing, लेकिन I was not earning anything at all। मैंने 2009 से लेके 2014 तक कंटिन्यू स्ट्रगल की है टू अर्न प्रोजेक्ट्स, टू अर्न मनी। आई कुड नॉट डू दैट, ठीक है। 2014 में एक क्लाइंट मुझे मिला है, एक क्लाइंट, उसने भी क्या किया, फ्रीलांसर पे मुझे काम दिया है, ठीक है। ही वर्कड विद मी फॉर 1.5 year, लेकिन वो मुझे पेपैल पे पैसे भेजता था। देयर वाज नो प्रूफ ऑफ the conversations or anything at all on freelancer। all the money that I used to get was through that was through PayPal back then, ठीक है। तो मेरे पास ना वो रेटिंग्स का प्रूफ था। अगर वो रेटिंग्स दे देता, बिलीव मी, विच इज ऑल्सो काइंड ऑफ माई मिस्टेक, अगर वो मुझे रेटिंग दे देता तो फ्रीलांसर पे मुझे और प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। लेकिन मेरे पास फ्रीलांसर पे आज भी प्रूफ नहीं है कि मैंने कोई काम किया है, हालांकि मैंने किया है। दैट्स द रियलिटी। मैंने 1.5 साल उस बंदे के साथ काम किया है एंड आई यूज टू अर्न लाइक 20,000 बैक देन। हर महीने में अर्न कर लेती थी आराम से, आई वॉज अ स्टूडेंट, आराम से अर्न कर रही थी। तो उस एक बंदे ने लेकिन इतना जरूर मुझे कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया कि इंट्रोड्यूस मी टू फ्रीलांसर एंड देन फाइवर, ठीक हो गया। उसने भी उस चीज ने मेरी लाइफ को चेंज करना शुरू किया है। मेरे पास पोर्टफोलियो बिल्डअप होना शुरू हो गया कि मुझे काम मिलता था, मैं काम करती थी, ठीक है, पे मुझे अच्छा मिल जाता था और मुझे खुशी हो रही थी, लाइक आई वाज अर्निंग डॉलर्स, ठीक है, इवन व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। और ये चीज हो गई, ठीक हो गया। ये आपको जरूर आपकी लाइफ में होता और होना चाहिए और आपने ढूंढना है। अच्छा, आज आपका काम छोटा है, ठीक है, यानी थोड़ा है, लेकिन कंसिस्टेंसी करते रहने से इट विल डेफिनेटली इंक्रीज योर वर्क पोर्टफोलियो व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आई ऑलरेडी सेड दैट एंड आई एम आल्सो सेइंग दैट राइट नाउ, ठीक है। यस, दैट्स अ वंडरफुल कोट, ठीक है। अच्छा, एचआर प्रोफेशनल्स प्रोजेक्ट कैसे हासिल कर सकते हैं, ठीक है, दैट्स वंडरफुल टू नो नादिया, क्या नहीं, थैंक यू। जी, एचआर प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो आप काफ़ी सर्विसेज देते हैं। सीवी राइटिंग होती है, सीवी रिव्यूइंग होती है, फिर उसके अलावा जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, ये बहुत बड़ी एक डायमेंशन है। फिर एचआर पॉलिसीज को डेवलप करना, फिर उसके अलावा पे रोल्स, उसके अलावा क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी डायमेंशन है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में ऑन साइट ट्रेनिंग्स होती हैं, ऑफ साइट ट्रेनिंग्स होती हैं, बड़ा कुछ इसमें इंक्लूड हो रहा होता है, ठीक है। तो उस वजह से आप इससे एक्सप्लोर करें तो आपके पास तो बहुत सारी फील्ड्स आ जाएंगी और आपको मजा आएगा वो चीज एक्सप्लोर करने का। अच्छा, अगर एक बंदा सर्विसेज सेल कर रहा है विदाउट हैविंग एनी कंपनी, व्हाट वुड वी से फॉर इट? Yeah, that person is a freelancer, ठीक है, that person is not a business person, provided वो बंदा अकेला काम कर रहा है। if that person is still having a team, whether that business is registered or not, वो बंदा फिर भी businessman होगा, ठीक है। ये चीज होती है, यानी आपकी सेल्स जो है ना वो डिपेंड करेंगे। और दूसरी बात है, फ्रीलांसिंग इज ऑलवेज अबाउट सर्विसेज, इट्स नॉट अबाउट द प्रोडक्ट्स। आप किसी शॉप को खोल के बैठ जाएं और वहां पे आप वो जो है ना, मिसाल के तौर पे किराना स्टोर एक खोल लिया आपने, ठीक है, या मैंने खोल लिया किराना स्टोर। मेरे पास कस्टमर आ जा रहे हैं, 5 आ रहे हैं, कल मेरे पास 10 आ रहे हैं, महीने बाद 100 हो गए, 2 महीने बाद मेरे पास 1000 तक चले गए। लेकिन मैं बिजनेस पर्सन होंगी, फिर मैं फ्रीलांसर नहीं होंगी। फ्रीलांसर तो मैं तब हूँ कि वही प्रोडक्ट मैं ऑनलाइन बेच रही हूँ, ठीक है, ऑनलाइन किराना स्टोर में चला रही हूँ, ठीक है। कस्टमर मेरे चाहे 1000 हो, 500 हो, 200 हो, 100 हो, 5 हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अकेली हूँ। तो फिर गेटिंग माई पॉइंट, वो होती है फ्रीलांसिंग, ठीक है। अच्छा जी,
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम हमेशा निग्लेक्ट करते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और अ पर्सन परफेक्ट, हाँ, ये हम एक्सक्यूज हमेशा मी, निग्लेक्ट करते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि फॉर एग्जांपल फ्रीलांसिंग पे तो बात हो रही है, फाइवर एक मीटिंग है, एरिया है जहाँ पे फ्रीलांसर जो है वो क्लाइंट से मिलता है। तो क्या बिल्कुल। अगर मैं फ्रीलांसिंग में आना चाहती हूँ तो मुझे फाइवर की ट्रेनिंग लेनी चाहिए या मुझे खुद से एक्सप्लोर करके मैं कर सकती हूँ? इस पे थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें प्लीज। अच्छा, मैं आती हूँ इस बात पे। देखिए, हर हर प्लेटफॉर्म के ना रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हैं, उनका जो स्टाइल ऑफ गिविंग यू अ प्रोजेक्ट वो भी अलग होगा उनके। अब जैसे फाइवर की जो टर्मिनोलॉजी है ना, वो कहते हैं कि जी आप प्रोफाइल अपनी जो बनाते हैं तो आप वहाँ पे गिग अपलोड करते हैं, जबकि फ्रीलांसर पे आप जाएंगे वो आपको कहेंगे कि अच्छा आपने अपनी स्किल सेट वगैरह जो है ना वो डिफाइन कर दिया अपनी प्रोफाइल के ऊपर, उससे रेलेवेंट आपको प्रोजेक्ट्स वहाँ पे शो अप होने शुरू हो जाएंगे। आप ब्राउज प्रोजेक्ट्स पे जाएंगे और वहां से आप प्रोजेक्ट्स को ढूंढना शुरू कर देंगे, उधर वहां पे बिड करना शुरू कर देंगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड फाइवर पे आप जाएंगे, फाइवर पे आपने गिग्स को बनाया हुआ है, ठीक है। फाइवर क्या करेगा कि वो आपको कहेगा ओके इफ यू हैव मोर देन 90% रेटिंग ऑन योर प्रोफाइल, ठीक है, तो आप बायर रिक्वेस्ट वाली साइट पे जाएंगे, वहां पे जो भी प्रोजेक्ट्स है ना नजर आ रहे हैं, तो आप उस पर किसी पे भी क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली फाइवर देखेगा कि उसमें से कौन सा आपसे गिग से रिलेट कर रहा है, तो साथ ही उसके रिलेटेड गिग जो है ना उसका प्रपोजल जो है ना, साथ आपका कोई प्रपोजल मैसेज भी होगा जो आपने लिखना होगा उसके साथ, और या आप उसको क्या कोट कर रहे हैं प्राइस वगैरह वो भेज देगा, ठीक है। तो उससे जो है ना जो ऑडियंस है वो ऑटोमेटिकली फिर आपकी प्रोफाइल पे आना शुरू हो जाएगी। वहीं से आप कस्टम ऑफर्स भी भेज सकते हैं, लाइक लोगों को बताएं कि जी आपने जो प्रोडक्ट लेनी है वो हम लोग भी ऑफर कर रहे हैं, लेकिन हम इस रेट पे ऑफर कर रहे हैं, तो अगर आप इस पे अग्री नहीं है तो लेट्स हैव अ कस्टम ऑफर फॉर यू, कि हम उसमें एक और चीज ऐड कर देते हैं आपके लिए, आप सिर्फ आपके लिए पर्टिकुलरली, तो आप वो जो है ना अगर इंटरेस्टेड हैं तो हमें बताएं। तो वो अगला बंदा फिर आपको इनबॉक्स में राब्ता करेगा कि हाँ जी आई एम इंटरेस्टेड, और वो फिर भी लेकिन आपकी प्रोफाइल पे जाएगा और वहां पे वो गिग ऑर्डर करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक व्हाट इज डिफरेंस है, गिग? प्लेटफॉर्म्स सॉरी, का डिफरेंस। व्हाट इज गिग? मींस मुझे ये समझ आ रही है कि फ्रीलांसर शायद ज्यादा बेहतर है फाइवर के मुकाबले। आई डोंट नो अबाउट फाइवर। फ्रीलांसर पे तो मैंने थोड़ा सा देखा है काम, लेकिन फाइवर का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्या है, तो दैट्स फ्रीलांसर व्हाई पे, आई आस्क्ड। जी जी, फ्रीलांसर पे ना कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए क्योंकि एक तो ये वेबसाइट बहुत पुरानी है, ये ओडेस्क वगैरह से भी बहुत पुरानी है, ओडेस्क को रीनेम करके अपवर्क कर दिया गया हुआ है काफी अरसे से, वो भी नाम चेंज हो गया हुआ है, अगर आपकी नॉलेज में होगा डेफिनेटली। तो लेकिन फ्रीलांसर बहुत पुरानी वेबसाइट है, जाहिर बात है पुरानी वेबसाइट है, ज्यादा लोगों को पता है तो वहाँ पे कंपटीशन भी ज्यादा है, ठीक है। लेकिन फाइवर ऑन दी अदर हैंड उस पे ज्यादा लोगों को प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, वजह यही है कि दे जस्ट नीड टू मेंटेन अ रेटिंग मोर देन 90%, खुद ही बाय रिक्वेस्ट पे वो अप्लाई करते जाएंगे और अपॉर्चुनिटीज उनको मिलती जाएंगी, ठीक है। फिर अच्छा, उसमें और कुछ टिप्स रेटिंग और ट्रिक्स कैसे होती हैं। बनेगी? सॉरी, आपकी बात कर रही हूँ, रेटिंग कैसे बनेगी? लाइक रेटिंग तो तभी होगी जब आप अपने कोई प्रोजेक्ट शो करेंगे या आपको कोई मिलेंगे या आपने कोई काम किया होगा। जैसे कंटेंट राइटिंग है तो आपने कोई अपना जो कंटेंट राइटिंग की है उसको आप डालेंगे तो उस पर रेटिंग होगी, या कैसे होगी? आई डोंट नो। देखें, जब आप फाइवर पे गिग्स बनाती हैं ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल अब व्हाट वो इज उस पे ना गिग? जो सॉरी। स्टार्ट क्या होता है, देखिए फाइवर पे स्टार्ट क्या होता है, जब भी आप गिग क्रिएट कर रहे होते हैं वहां पे लिखा होता है कि आई विल डू दिस फॉर यू, ऐसे लिखा होता है। अब वो आप जितना शॉर्ट और अट्रैक्टिव लिखते हैं ना, तो पहली ऑडियंस ने जो है ना वो सेंटेंस पढ़ना है आपके बारे में, ठीक है, आई विल डू दिस फॉर यू, ठीक है। अब वो दिस में आप आई विल मेक एन अट्रैक्टिव कंटेंट फॉर यू, आप लेट से ये लाइन लिख देते हैं। आगे वो कहेंगे कि अच्छा आप ना इससे रिलेवेंट अगर आपके पास कोई वीडियो है, एक्सप्लेनेटरी वीडियो है, वो अपलोड करते हैं, कोई आपके पास पोर्टफोलियो पीडीएफ फॉर्मेट में वो अपलोड करते हैं गिग बनाते हुए, फिर आप उसके ऊपर ना प्राइसेस कोट कर देंगे, पैकेजेस होते हैं कि आप उस पर 3 पैकेजेस बना लें, ठीक है, कि एक बेसिक है, मतलब कि एक स्टार्टर है, एक इंटरमीडिएट है, एक जरा वो प्रीमियम टाइप है, जो प्रीमियम थोड़ा सा एक्सपेंसिव रखते हैं। जो स्टार्टर है वो बड़ा सस्ता तरीन रखते हैं कि ज्यादातर ऑडियंस आपकी स्टार्टर चेक करने के लिए ही आएगी, बिकॉज दे वांट टू चेक हाउ यू आर वर्किंग, वो हमेशा लोएस्ट प्राइस पे रखें, ठीक है, ताकि ऑडियंस आपके पास आए। तो जब आप गिग को जो है ना अपलोड कर देते हैं, ठीक है, तो
फाइवर आपको कहता है कि अच्छा इसको आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जहां आपका दिल करता है शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले। आई वुड रिकमेंड वहां पे लिंक्डइन का बहुत यूज करना है। लिंक्डइन आपकी ऑडियंस बहुत लेके आता है। अच्छा ये हो गया, और से आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है कि यू आर एग्जिस्टिंग ऑन लिंक्डइन, वेरी बिग थिंग यू नो। फिर उसके बाद आप उसी के रिलेटेड वीडियोस या ट्यूटोरियल्स या चीजें या पोर्टफोलियो जो है ना वो बना के उसको यूट्यूब पे डाल दें। और अगर क्लाइंट आपसे कोई पोर्टफोलियो या वर्क प्रूफ मांगता है, सैंपल्स आपके पास मौजूद होंगे, आप कहेंगे अच्छा जी फलानी वेबसाइट पे जाएं, या मेरा कंटेंट पड़ा हुआ है, वो आपका कंटेंट देख लेगा, वहीं से फिर वो आपकी तरफ आएगा और कहेगा ओके आई वांट दिस केक फ्रॉम यू, ठीक है, वो आपको ऑर्डर कर देगा। ये होता है। Okay, thank you very much. Thank you. Welcome. Thank you. I'm just happy that I was able to answer your question properly. Did I, by the way? Sorry? Did I answer? Did I answer your question properly? Yeah, you Okay. have answered it. Yes. Okay. Thank you Thank so you. much. Thank you. अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम forget, we always forget. भी मैं अपने आप में शामिल कर रही हूँ। तवक्कुल जो है ना अल्लाह ताला पे रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जब होगा हमें कभी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में नहीं फेस करनी पड़ेगी। फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा फोकस लूज हो जाता है, खासतौर पे मेरा, क्योंकि मैं ज़ाहिर मदर हूँ, आई एम मदर, तो यू नो आई एम आल्सो रेजिंग माय टू किड्स विद मी, यू नो आई एम आल्सो डूइंग अ जॉब नाउ, तो ज़ाहिर फ्रीलांसिंग भी अफेक्ट हुई थी उससे, no doubt, but I just restarted it again because I could not stop it. It was my passion after all. I could not stop it. जॉब तो मैंने इसलिए कर ली कि okay I need to have a fixed income earning, जो कि एक कंफर्मेशन है कि okay I'm earning this particular income in any case, ठीक हो गया। लेकिन फ्रीलांसिंग इसलिए क्योंकि it was my passion. I wanted to do something on my own. ठीक है, मुझे पता मैं खुद से मेहनत करके खुद से earn कर रही हूँ, बड़ा मजा आता है उस चीज का। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अल्लाह ताला आपका बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है ना। तो लेकिन ये कि जाहिर बात है अल्लाह ताला के साथ के बाद जब आप किसी और लोगों की बात करें तो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके पास, आपकी फैमिली में हो सकते हैं, जानने पहचानने में हो सकते हैं, लाइक जान पहचान के लोग हो सकते हैं, लेकिन लोगों का पता आपको हो कि ये बंदे वाकई मेरे साथ सिंसियर है। इसको हम जरा जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं क्योंकि ये इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड की एक अच्छी बात है कि जो कि हम फ्रीलांसर्स के लिए बड़ी अच्छी है, इन्होंने क्या किया है कि मतलब इंक्लूडिंग मी, इन्होंने ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्रीलांसर्स ऑफ पाकिस्तान की जो है ना कॉफी बुक को लॉन्च किया। ठीक है, उसके अंदर इन्होंने सक्सेस स्टोरीज उन सब फ्रीलांसर्स की मेंशन की है। और आज इन्होंने आज मेरा मतलब है कि इस साल इन्होंने ये लॉन्च किया और हर साल इंशाल्लाह ये करेंगे। फ्रीलांसर्स को ये रजिस्ट्रेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं और जून 22 सॉरी 2022 तक ना, जून के, ये फ्रीलांसिंग रजिस्ट्रेशन फ्री है और उसके बाद 2,000 रुपया पर ईयर हो जाएगी, आई गेस, इतना मुझे आइडिया शायद। ठीक है, लेकिन इसका एज ये होगा कि गवर्नमेंट के नोटिस में आप आ जाएंगे कि आप एक फ्रीलांसर हैं और गवर्नमेंट आपको वहाँ पे सपोर्ट करना शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड गवर्नमेंट के इदारा है। ठीक है, पब्लिक इंडोर्समेंट आपको मिलेगी, गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती रहेगी आपको। और ये तो मैंने आपको बता दिया है, कॉफी बुक का बताया कि ये इस साल भी गवर्नमेंट आई तो है, टैक्स उम्मीद है भी कि लगा देगी ना, सिर्फ जी सपोर्ट नहीं जी, करेगी। नहीं टैक्स नहीं लगता इन पे, ये भी मैं बता रही हूँ, 1% टैक्स है, 1% टैक्स है, टैक्स नहीं है ज्यादा, काफी ओवरऑल टैक्स एग्जेम्प्ट है। अच्छा, उसके बाद ये है कि आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को वो बूस्ट कर रहे हैं अपने Excuse me, प्लेटफॉर्म ma'am. वगैरह से, और इंटरनेशनल क्लाइंट्स की ऑडियंस, इंटरनेशनल क्लाइंट्स जो है ना वो आपकी तरफ आएंगे जब वो ये देखेंगे कि अच्छा इसने आपको इंडोर्स कर दिया, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड ने। ठीक है, फिर इनकी कुछ पॉलिसीज इन्होंने बनवाई, उसको हम सब ने रिव्यू किया था। ये पॉलिसीज नेशनल असेंबली में जा रही हैं, सेनेट में जा रही हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जा रही हैं अलॉन्ग विद दोस कॉफी बुक्स। ठीक है, तो फिर ये कि फ्रीलांसर्स को बड़े मसाइल का सामना आता रहा है, उसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इनकी पीसी बोर्बन में, उन्होंने बड़ा कुछ वहाँ पे डिस्कस किया और एक अच्छा मतलब उन्होंने नतीजा निकाला कि हाँ जी हमें आइडिया हो रहा है कि फ्रीलांसर्स को बहुत प्रॉब्लम है, इंटरनेट इश्यूज तो हर घर में होते हैं, फिर उसके अलावा हमें पेमेंट सोल्यूशन का बड़ा प्रॉब्लम आता है। ठीक है, सर 10,000 मसाइल हैं फ्रीलांसर्स के, वो सब ने डिस्कस किए हैं, छोटे बड़े लेवल पे, छोटे सिटीज के, बड़े सिटीज के, इस तरह की चीजें। तो ये चीजें जो है ना वो बड़ी एक फायदेमंद रही हैं। और अब आ जाते हैं नेटवर्किंग पे।
नेटवर्किंग एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, हम इसे बहुत निगलेक्ट करते हैं। और जहां मैंने बात की थी कि हमारी सोशल मीडिया प्रेजेंस होनी बड़ी जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज, वहाँ ये भी जरूरी है कि हमें पता हो कि नेटवर्किंग की क्या वर्थ है। ठीक है, नेटवर्किंग कैसे हो सकती है सोशल मीडिया पे? अगर आपने अपनी ऑडियंस को बढ़ाना है, आप क्या करेंगे? पहली तो चीज है, यू हैव टू स्टे एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, टिकटॉक है, स्नैक वीडियो, यहाँ पे आपने कुछ ना कुछ अपलोड करते रहना है, कुछ ना कुछ। जरूरी नहीं होता कि आप कोई बोरिंग सी अजीब सी वीडियो अपलोड कर दें, अव्वल तो उस पर कोई आपको एंगेजमेंट मिलेगी भी नहीं। अगर रीजनेबल, डिसेंट, एजुकेशनल, हेल्पफुल वीडियो है, वर्थ वॉचिंग वीडियो है कि हर एज ग्रुप का बंदा या बच्चा वो वीडियो देखना चाहेगा, तो ऑब्वियसली आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी और आपके पास एक डिसेंट ऑडियंस जमा होना शुरू हो जाएगी। फिर ये कि वायरल वीडियोस के ऊपर कमेंट्स जरूर कर दिया करें, कोई अच्छा रिव्यू दे दिया करें, लेकिन अगेन कौन सी वायरल वीडियोस? अच्छी डिसेंट वायरल वीडियोस, जिनके ऊपर आपको पता है कि जब ऑडियंस आपको देखेगी कि आपने इस वीडियो पे कमेंट किया था, तो वो उसके बेस पे आपको वैल्यूएट कर रहे होते हैं आपकी मेंटेलिटी क्या है। तो अगर आप अच्छी वीडियो पे, वायरल वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं, तो कंटेंट जरूर आपका पढ़ते हैं डेफिनेटली, एंड दे try to find your profile, obviously they follow your profile later on कि अच्छा ये बंदे के व्यूज तो बड़े कमाल हैं, बहुत अच्छे, मतलब इस बंदे ने, ये बंदी ने बात की है। ठीक है, फिर आप इस तरह न्यूज़पेपर्स और सोशल मीडिया पेजेस जो है ना, न्यूज़पेपर्स वगैरह के, वहां पे कई दफा न्यूज आ रही होती है, वहां पे अपने रिव्यूज दें, व्यूज शेयर करें अपने, ब्लंटली करें, लेकिन अगेन वही जो पहले मैंने बात बताई थी कि रिलीजन को बीच में नहीं आपने लाना किसी बात में, यानी बायस्ड ओपिनियंस नहीं देने, न्यूट्रल रह के बात करनी है, बिल्कुल न्यूट्रल रह के। ठीक है, उससे आप किसी भी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करते, ना खुद आप हर्ट होंगे ना कोई आपको हर्ट कर सकता है, ये होता है। ठीक है, और एक्टिव डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई अच्छा टॉपिक डिस्कस हो रहा है उसके अंदर बिल्कुल पार्टिसिपेशन करें, ब्रेवली मैं कहती हूँ पार्टिसिपेट करें, हेल्थी आर्ग्यूमेंट्स में जरूर हिस्सा बने, किसी भी फाइटिंग आर्ग्यूमेंट का हिस्सा नहीं बनना कभी भी जिंदगी में, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो इंटरनेट पे हो, नेवर। लेकिन कोई हेल्दी आर्ग्यूमेंट है जरूर हिस्सा बने, उसका अच्छा ट्रक्स जो है ना निकालने के लिए या कंक्लूजन निकालने के लिए जरूर उसमें कंट्रीब्यूट करें। हर प्लेटफॉर्म पे कंटेंट अपलोड करना जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, यू कांट जस्ट नेग्लेक्ट इट। उसके बाद ये कि कभी कभी आप ऐसा भी कर सकते हैं, कभी कभी नहीं बल्कि आप हर महीने आप ये कर सकते हैं, और इट वोंट इवन टेक सो मच मनी एक्चुअली। मैं आपको अपना बताती हूँ कि मैंने जो मेरी पिक्चर जो है ना रिसेंटली यानी अपलोड हुई थी फेसबुक पे, अभी वाली तो नहीं है, थोड़ी सी पहले वाली, वो मैंने क्या कहते हैं, स्टूडियो में जाके लिटरली सिर्फ 100 रुपया दे के मैंने पासपोर्ट साइज पिक्चर्स जो है ना वो बनवाई, 100 रुपया दे के। बल्कि मैंने वो उससे कहा कि मुझे आप ना एक काम करो, मुझे प्रिंट मत दो इनका, मुझे प्रिंट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सॉफ्ट कॉपी दे दो। 100 रुपया, मुझे फील भी नहीं हुआ, और वो मैंने पिक्चर 6 महीने चलाई है। 6 महीने से मैंने चलाई नहीं है, बल्कि मैंने उसको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे यूज भी किया, और मैंने उसके थ्रू कितनी जगह पे अपनी पीआर को जनरेट भी किया है। ठीक है, ओनली 100 रुपीज। लेकिन क्या था कि वो पिक्चर डीएसएलआर से खींची हुई थी, उसका बैकग्राउंड प्लेन वाइट था, और डीएसएलआर की वजह से उसके जो कलर्स और जो इफेक्ट्स थे वो बहुत नीट एंड क्लीन थे, विच इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड पिक्चर ऑन योर प्रोफाइल्स, और एक ही पिक्चर हो। ज्यादा फैमिली लाइफ को मत डिस्कस करें कभी भी, कोई भी बंदा आपकी पर्सनल फैमिली लाइफ के बारे में डिटेल में जानने में इंटरेस्टेड नहीं होता। हाँ, बेसिक्स वो जरूर सुनने में खुश होंगे, लाइक ओके यू हैव किड्स, यू हैव फैमिली, आप उनके बारे में थोड़ा सा जनरल भी दे सकते हैं कि अच्छा हम लोग फैमिली में हमारी एक डिसेंट रूटीन होती है ना, ओवरऑल एक आप डिस्कशन करते हैं, दैट इज फाइन। लेकिन पर्सनल डिटेल्स लाइक रोजमर्रा की जो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, वो जैसे प्रॉब्लम है वो नहीं डिस्कस करने, नेवर। ठीक है, ट्यूटोरियल्स आपके कोई भी हो सकते हैं, वीडियोस आपके कोई भी हो सकते हैं, ओपिनियंस हैं, रिसर्च वर्क है, रेसिपीज हैं, गेम के स्क्रीनशॉट्स हैं, सॉरी क्लिप्स हैं, स्निपेट्स यानी, या इंटरव्यूज हैं, कुछ भी है उसको सोशल मीडिया पे अपलोड जरूर करें। ऑफ द सोशल मीडिया क्या हो सकता है, इवेंट्स और मीटअप्स को अटेंड करते रहना, वेरी इंपॉर्टेंट, उनको निगलेक्ट नहीं करना। कहीं पे आपको पता चला अच्छा यहाँ पे सेमिनार है, यहाँ पे इवेंट हो रहा है, आप वहाँ पे चले जाएं, वहाँ पे लोगों से बातचीत करें। कम्युनिकेशन स्किल्स वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए,
लोगों से ज्यादा बात करें। और आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर 500 प्लस ऑडियंस है ना कहीं पे, तो आप इतनी ऊंची आवाज में मेंटोर से क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको माइक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए, ठीक है। फिर ये कि इतना आपका कॉन्फिडेंस हो कि आप टॉप नॉच इन्फ्लुएंसर्स वगैरह हैं उनके पास आप इजीली जा सकते हैं, कोई हेजिटेशन आपको नहीं होनी चाहिए। एंड यू नीड टू हैव अ वेल प्रिपेयर्ड माइंड, यू नीड टू हैव योर एलिवेटर पिच रेडी, ठीक है। ये एलिवेटर पिच क्या होती है? आप जब लिफ्ट में जाते हैं ना, तो इन दैट लिफ्ट यू जस्ट हैव गॉट 1 मिनट। अब उस 1 मिनट के अंदर अंदर आपने किसी को भी अपना या तो इन्वेस्टर बनाना है, या अपना क्लाइंट बनाना है, या कस्टमर बनाना है, या सिर्फ एक ऑडियंस बनाना है जिसने आपको सुनना है। अब आपने उस बंदे की नेचर को जज करना है पहले तो, क्विकली उसके गेटअप को देख के, फिर हल्का सा उसके बारे में पूछ लिया, और उसके बाद साथ ही आपने पिच कर दिया उस बंदे को कि मेरी ये प्रोडक्ट है या मेरी ये सर्विस है, ये आपको ऐसे फायदा दे सकती है। अब आप बताएं, आप इंटरेस्टेड हैं तो हम इसको कैसे कैरी ऑन करें, और मैं वेट करूंगी इस तरह करके। और वेट कैसे करना है, कांटेक्ट कैसे करना है, आपने उस बंदे को या बंदी से बिजनेस कार्ड अपना शेयर कर लिया और उससे उसका बिजनेस कार्ड ले लिया, और इस तरह आपकी डिस्कशन खत्म हो जाती है उस बंदे से, ठीक है। और उससे सोशल मीडिया का अकाउंट वगैरह ले लिया, उसको ऐड कर लिया आपने, और उसने आपको ऐड कर लिया, वाइस वर्सा, और इस तरह से आपकी कम्युनिकेशन शुरू होती है। मैंने अपनी मेजॉरिटी ऑडियंस ऐसे बिल्डअप की है, एलिवेटर पिचेस से, और वो भी नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। फिर ये कि जब आप पहले दफा किसी से फ्रेंडली बिहेव करेंगे ना, ठीक है, तो डेफिनेटली आप उनको व्हाट्सएप और फेसबुक पे इजीली ला सकते हैं, ठीक है। अगर आप उनसे रूडली बिहेव करेंगे, एरोगेंस शो करेंगे, तो वो आपको कभी भी लाइक नहीं करेंगे, वो कहेंगे दिस पर्सन इज वेरी प्राउडी, यू जस्ट हैव टू अवॉइड दैट। ये चीज नहीं होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप्स के अंदर हिस्सा रहें, व्हाट्सएप के ऊपर बहुत एक्टिव ग्रुप्स होते हैं, उनमें हिस्सा रहें। कभी कभी यू डू गेट बोर्ड, हम भी होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे ग्रुप्स को म्यूट कर देते हैं फॉर सम टाइम। अच्छा, जिस टाइम पे जरूरत नहीं है तब तक हम म्यूट कर देंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका अच्छा है या बुरा वक्त है, जस्ट बी कंसिस्टेंट, जस्ट बी हम्बल एवरी टाइम। एंगर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, एंगर मैनेजमेंट, खासतौर पे पब्लिक में। पब्लिक के सामने बहुत ध्यान से रहें कि आप क्या बात कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि वो जो इम्प्रेशन आपका लेके जाएंगे वो लाइफ लॉन्ग होगा, आप उसको हर दफा चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। फोकस पे जब आप सॉरी पर्सनालिटी पे आपने फोकस करना है, तो आपने इनसाइड आउट पर्सनालिटी पे फोकस करना है। वो पर्सनालिटी फिर आपकी जाहिर बात है लोगों के सामने आएगी, एंड एवरीवन विल नोटिस इट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप अपनी फ्रीलांसिंग को कैसे बढ़ा सकते हैं? ऑब्वियसली इफ यू आर मीटिंग वेल एस्टैब्लिश्ड मेंटोर्स हु आर फेमस ऑन सोशल मीडिया, जस्ट कोलैबोरेट विद देम, ठीक है, आइदर इन पर्सन और थ्रू सोशल मीडिया चैनल। उसके बाद आप उन लोगों के लाइव इंटरव्यूज ले लें, ठीक है, थ्रू फेसबुक लाइव और स्ट्रीम यार्ड। फिर ये कि आप जो आपने जो भी काम आप करते हैं उसकी डेमोन्स्ट्रेशन जो है ना, यानी उसका जो आपने दिखाने को किस तरह का काम है, उसको यूट्यूब वीडियो बनाएं, और उसको उसी वीडियो को आप सोशल मीडिया पे कहीं भी अपलोड कर दें, ठीक है। टॉप नॉच पर्सनालिटीज जो है ना, उनको जरूर मेंशन करें कि जी वो जरूर आपकी अचीवमेंट्स को चेक कर लें। फिर कॉन्फिडेंस आपका हमेशा रहना चाहिए इनसाइड आउट। अपेरेंस और गेस्टर्स पे जरूर काम करें, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो भी बिजनेस कार्ड आपके पास होते हैं ना, वो आपने घूमने नहीं देने, उनको एक तो ये कि किसी पोर्टफोलियो किसी चीज के अंदर सिक्योर कर लें, बिजनेस कार्ड होल्डर वगैरह होते हैं उसमें रख लें। दूसरी बात है उनके सारे कॉन्टैक्ट नंबर अपने फोन में सेव कर लें, ठीक है। और अपने बारे में क्यूआर कोड जनरेट कर लें जिसपे आपकी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर इसके अलावा कि आप जो भी अच्छी पर्सनालिटीज हैं उनको फेसबुक पे सर्च करें, लिंक्डइन पे सर्च करें, उन सबको कोशिश करें ऐड कर लें, उनसे राब्ते में रहें, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल रेगुलरली अपडेट करते रहें, यूट्यूब वीडियोस को आप अपने पोर्टफोलियोज में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। विद ऑल दिस बीइंग सेड, मैं इसको क्विकली समराइज कर देती हूँ कि हमने ये डिस्कस किया आज के फ्रीलांसिंग एक मस्ट टू डू थिंग है, अब इसके बगैर गुजारा नहीं है, इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर बीइंग लेड ऑफ, और जाहिर बात है अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, प्राइसेस आर हाइकिंग अप, और एक इनकम स्ट्रीम जो है वो उससे भी गुजारा नहीं हो रहा, एक बंदे की इनकम से भी गुजारा नहीं हो रहा। तो अब आप जो है यू नीड टू हैव एन इनकम
earning, by more than two people, two or more. You need to have two or more bread earners in your family. It's very important for you, and so is for the other family members. तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर हमने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया डायमेंशंस को, कि फ्रीलांसिंग की क्या डायमेंशंस होती हैं। कि अगर आपको ये पूछा जाए कि आपने फ्रीलांसिंग को ज्वाइन करना है, तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू थिंक अबाउट इज, ओके व्हाट शुड आई डू। ये आपका सवाल होता है। उसका आंसर होता है, ओके देयर आर द मोस्ट फेमस 8 डायमेंशंस दैट आई हैव डिग्ड आउट एंड फाउंड आउट फॉर यू गाइस। ठीक है। that you can actually explore and you can study about them deeply, then you can evaluate, okay, which among these I can go with। ठीक है। फिर पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड का मैंने थोड़ा सा क्यों डिस्कस बीच में कर दिया, इसलिए क्योंकि जाहिर बात है गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, और कुछ ना कुछ फ्रीलांसर्स के लिए अब इन्होंने करना शुरू किया। फाइनली आई वुड से फाइनली एक बहुत वेलकमिंग स्टेप है हम सब फ्रीलांसर्स के लिए, स्मॉल बिजनेसेस के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और फ्रीलांसिंग ऑब्वियसली से जब रेगुलेट होगी तो फ्रीलांसर्स के प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व हो जाएंगे, ज्यादा लोग फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में एंटर भी हो जाएंगे। स्टार्ट में हमने जैसे डिस्कस किया था कि 18 to 24 इयर्स के जो लोग हैं वो इनकम जनरेट करने का पोटेंशियल रखते हैं, वो काम भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन उनकी अर्निंग कम है। ठीक है। फिर भी इतना, यानी जितना वो काम कर रहे हैं उससे उनकी 2 times लेस अर्निंग है। ठीक है। इतनी वो एफर्ट्स कर रहे हैं। तो इसके बावजूद मतलब जब हम ये सब देख रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि अच्छा ये, और यही वो सेक्टर है, यही वो एज ग्रुप है जिसमें एक बंदा है और उसकी डिग्री की जो फी है वो भी इन लैक्स होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर वो प्राइवेटली ओन्ड यूनिवर्सिटी है तो उसकी तो डिग्री की फी भी अच्छी खासी होती है। तो पेरेंट्स हैव अ लॉट ऑफ burden on their shoulders if you are talking about the degree fee। तो ये चीजें हैं। फिर जब आप खुद टाइम पे अर्न करना शुरू कर देंगे तो